आद्य परब्रह्म सदगुरुदेव की जय। ओम श्री परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ बोले कमल जेवा सुंदर मित्र हे महाबाहु रामचंद्र। પેલા જે લોકો આવ્યા એને બુક આપે એટલે પાના નંબર બોલો. બુક આપવા દે. પાના નંબર બોલો. सर्ग 93 पेज नंबर 1057 1057 डाबी बाजू નીચેની સાઈડ। કુંભ મુનિ બોલ્યા બાજુ પાના ખોલવા દે. પાના ખોલ્યા બધે 1057 જમણી સાઈડ થી બીજા નંબરનો પેરેગ્રાફ બતાડો, બધાને બતાડજો. 1057 વશિષ્ઠ બોલ્યા. વશિષ્ઠ બોલ્યા. કુંભ મુનિ બોલ્યા હે શિખીધ્વજ રાજા, તમે હજી સર્વત્યાગ કર્યો નથી, છતાં તમે સર્વત્યાગથી થતા પરમ આનંદનો ખોટો ડોળ કરો નહીં। અહીં તમે ત્યાગ નહીં કરેલો સર્વનાથી મુખ્ય એક ભાગ બાકી રાખ્યો છે કે જેનો ત્યાગ કરવાથી તમને પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થશે। કરાવે છે તેમ એ જળ દેહને કોઈ બીજો જ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે। હવે બીજી ખુરશીઓ છે, આ લોકો આવ્યા નહીં. બુક આપજો. कैसे हैं आनंद मंगल? તમારે દેખાડવું હોય તો पेज नंबर 1058 પછી બાદ મેં आनंद प्रभु. पेज नंबर बोलो. पेज नंबर 1058 1058 ડાબી બાજુ બતાડજો. બધાને બતાડજો, ડાબી બાજુ બતાડજો. એ દેહ તો ધ્યાનીની પેઠે એક ફક્ત પોતાને વિશે જ જળ થઈ રહ્યો છે અને જેમ જળ લાકડાને તરંગ હલાવે છે તેમ એ જળ દેહને કોઈ બીજો જ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે। જેમ એકાંતમાં રહેલા કોઈ તપસ્વી પુરુષને મદોન્મત કોઈ ચોર વિઘ્ન નાખી હેરાન કરે તેમ એ દેહને પણ કોઈ બીજો જ પ્રેરણા કરી હેરાન કરે છે, માટે વારંવાર બળાત્કારથી એ જ દંડને પાત્ર છે। જેમ કોઈ ફળવાળું ઝાડ વાયુના ઝપાટાથી પોતાનું કાંઈ ફળ આદિ ખરી પડે તો ઈશ્વરના ઘરથી અપરાધી ગણી શકાતું નથી, તેમ આ જળ શરીરમાં સુખ દુઃખાદિથી ઉત્પન્ન થાય છે તો પણ એ શરીર અપરાધી ઠરતું નથી। જેમ વૃક્ષ ઉપરના પાંદડા ફળોને પુષ્પોને પવન હલાવી પાડી નાખે તો શું સુંદર વૃક્ષે અપરાધ કર્યો ઠરે? ન જ ઠરે। તેમ દેહને કોઈ બીજો જ પ્રેરી સુખ દુઃખાથી ઉત્પન્ન કરે તેમાં એ દેહે શું તમારા યોગ્ય આત્માને અપરાધ કર્યો ઠરે? ન જ ઠરે। હે કમળ સમાન સુંદર નેત્રવાળા રાજા, શરીરનો ત્યાગ કર્યાથી પણ તમારો સર્વત્યાગ સિદ્ધ થશે નહીં, કેમ કે તેનો ત્યાગ કરવો ખૂબ કઠણ છે। તમે આ નિરપરાધી શરીરનો વૃથા નાશ કરો છો, કારણ કે શરીરનો ત્યાગ કરવાથી તમે સગળું ત્યજ્યું તેમ ગણાશે નહીં। માટે જેમ કોઈ મનોન્મત હાથી વૃક્ષને પકડી થોભાવી રાખે તેમાં દેહને જે ટકાવી રાખે છે તે મહાપાપી કૌંસમાં ચિત્તનો જ તમે ત્યાગ કરો તો તમારો સર્વ ત્યાગ સિદ્ધ થાય। હે રાજા, તે ચિત્તનો ત્યાગ કર્યાથી સર્વ દેહાદિકનો ત્યાગ થઈ જાય છે, અને જો એ ચિત્તનો ત્યાગ ન થયો હોય તો
તો જન્મ મરણ આદિ વડે દેહનો નાશ કર્યાથી પણ કૌંસમાં પુનઃજન્મ આદિના બીજરૂપ ચિત્ત કાયમ હોવાને લીધે ફરી બીજો દેહ પ્રાપ્ત થાય છે. શીખીધ્વજ રાજા બોલ્યો, હે સુંદર દેવ પુત્ર, આ દેહને કોણ ચલાવે છે? પુનર્જન્મ અને કર્મનું બીજ શું છે? અને કોનો ત્યાગ કર્યાથી સર્વનો ત્યાગ સિદ્ધ થયો ગણાય તે આપ કહો. કુંભ મુનિ બોલ્યા, હે સુશીલ રાજા, દેહ ત્યાગ કર્યાથી કે રાજ ત્યાગ કર્યાથી કીવા ઝૂંપડી આદિ બાળી નાખવાથી સર્વ ત્યાગ સિદ્ધ થતો નથી, પરંતુ જે સંકલ્પ વડે સર્વને ઉત્પન્ન કરવાથી સર્વના કારણરૂપ છે તે સર્વનો કૌંસમાં ચિત્તનો ત્યાગ કરવાથી સર્વ ત્યાગ સિદ્ધ થયો ગણાય. શીખીધ્વજ રાજા બોલ્યો, હે સર્વ બ્રહ્મવેત્તાઓમાં ઉત્તમ દેવપુત્ર, સર્વરૂપે રહેલું સર્વમાં વ્યાપ્ત સર્વ ઠેકાણે અને સર્વકાળમાં ત્યાગ કરવા લાયક એવું જે સર્વ તમે કહ્યું તે શું છે એ મને કહો. કુંભ મુનિ બોલ્યા, હે સુશીલ રાજા, સર્વમાં રહી મનગમતું વર્તન કરનાર ભ્રાંતિવાળું શુદ્ધ ચૈતન્ય સત્તાથી જુદું અને ભ્રાંતિવાળું ચૈતન્ય સશુદ્ધ ચૈતન્ય. કુંભ મુનિ બોલ્યા, હે સુશીલ રાજા, સર્વમાં રહી મનગમતું વર્તન કરનાર ભ્રાંતિવાળું ચૈતન્ય સત્તાથી જુદું અને જળ શરીર આદિથી પણ જુદું જીવ પ્રાણ આદિ નામને ધારણ કરનારું ચિત્ત જ કૌંસમાં સર્વરૂપ હોવાથી સર્વપદથી કહેવામાં આવ્યું છે. ફેર છે. કુંભ મુનિ બોલ્યા, હે સુશીલ રાજા, સર્વમાં રહી મનગમતું વર્તન કરનાર ભ્રાંતિવાળું ચૈતન્ય સત્તાથી જુદું અને જળ શરીર આદિથી પણ જુદું જીવ પ્રાણ આદિ નામને ધારણ કરનારું ચિત્ત જ કૌંસમાં સર્વરૂપ હોવાથી કૌંસ પૂરું ચિત્ત જ સર્વપદથી કહેવામાં આવ્યું છે. હે રાજા, સઘળી ભ્રાંતિઓનું મૂળ ચિત્ત જ સમજવાનું છે. પુરુષ રૂપે વ્યવહાર કરનાર પણ ચિત્ત જ છે અને આ જગતના સમૂહ રૂપે પણ ચિત્ત જ રહ્યું છે એમ સમજો અને તેને લીધે એ ચિત્ત જ સર્વપદથી કહેલું છે. હે શીખીધ્વજ રાજા, જેમ વૃક્ષનું કારણ વૃક્ષ બીજ જ હોય છે તેમ રાજ્યાદિક અને દેહાદિક તથા આશ્રમાદિ સર્વનું બીજ ચિત્ત છે. એ સર્વના બીજનો કૌંસમાં ચિત્તનો ત્યાગ કર્યાથી સંપૂર્ણ રીતે સર્વ ત્યાગ સિદ્ધ થાય છે. હે રાજા, ચિત્ત ત્યાગથી સર્વ ત્યાગનો સંભવ હોવાને લીધે અને ચિત્તનો ત્યાગ નહીં કર્યાથી બીજા બધાનો ત્યાગ કરવા છતાં પણ ચિત્તરૂપ બીજ વડે તે બીજા જન્મમાં ફરી આવતું હોવાથી સર્વ ત્યાગ સિદ્ધ ન હોવાને લીધે ચિત્ત ત્યાગથી જ સર્વ ત્યાગ થાય એ વાત સિદ્ધ છે. સર્વ ધર્માદિક કે અધર્મ, રાજ્યાદિક કે વનાદિક એ બધું ચિત્તવાળાને પરમ દુઃખ આપનાર અને ચિત્ત વગરનાને પરમ સુખ આપનાર છે. સર્વ ધર્માદિક કે અધર્મ, રાજ્યાદિક કે વનાદિક એ બધું ચિત્તવાળાને પરમ દુઃખ આપનાર અને ચિત્ત વગરનાને પરમ સુખ આપનાર છે. જેમ બીજ વૃક્ષ રૂપે પરિણામ પામે તેમ ચિત્ત જ સર્વ જગત રૂપે દેહાદિ અનેક આકારો વડે પરિણામ પામેલું છે. વૃક્ષને જેમ પવન ચલાવે કૌંસમાં કંપાવે, પર્વતને જેમ ધરતીકંપ ડોલાવે અને ધમણને લુહાર ચલાવે કૌંસમાં ધમે છે, તેમ દેહને ચિત્ત જ ચલાવે છે, પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. વૃક્ષને જેમ પવન ચલાવે, પર્વતને જેમ ધરતીકંપ ડોલાવે અને ધમણને લોહાર ચલાવે છે તેમ દેહને ચિત્ત જ ચલાવે છે. સર્વ પ્રાણીઓમાં પ્રસિદ્ધ ઉપભોગોનો, જરા મરણ જન્મ આદિ દેહ ધર્મોનો તથા મહાત્માઓમાં રહેનાર સમદમાદિક શુભ ગુણોનો ચિત્ત જ અતિ દ્રઢ આશ્રય છે. महात्मा में समाधि तो जैसे वशिष्ठ ने राम को कहा ध्यान योग शून्य है लेकिन पूर्ण की प्राप्ति कराता है, तो वहाँ चित्त महात्माओं को समाधि से है ना, तो उसका मतलब वो नहीं रहता है समाहित होना माने समा जाना. तो जो अनंत शुद्ध चिदाकाश है, जो परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है, माने परम चिदाकाश परम सत्य परम तत्व,
तो चित्त उसका स्फुरण है। जैसे अनंत महासागर है तो उसका जल में चलन और तरंग और उसका उत्पत्ति स्थिति लय, तो चलन है वो प्राण है, तरंग है वो चित्त है, लेकिन वो अपीयरेंस है, दिखावा मात्र, वो है ही नहीं, महासागर ही है। तो अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो महात्मा में क्या होता है कि उसमें विवेक वैराग्य होता है कि ये स्फुरण का भ्रम है वो नहीं है, वो महासागर है। स्फुरण माने चलन, तरंग, प्राण, चित्त, उत्पत्ति स्थिति लय, ये कुछ नहीं है, ये अपीयरेंस है, आभास मात्र, विवर्त। और महासागर है वो पूर्ण तत्व है, पूर्ण सत्य है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजघन, अनंत चिदघन। तो जैसे महासागर है वो जल है, वैसे महाचिदाकाश वो चैतन्य है। तो चैतन्य का जो स्फुरण है वो चित्त है। तो महात्मा में विवेक है, वैराग्य है कि जल माने जल सत्य है, वो तरंग सत्य नहीं है, वैसे चैतन्य सत्य है, चित्त सत्य नहीं है। ऐसा वो भी बढ़ते हैं, आभास मात्र, स्फुरण है, भ्रम है, असत्य नहीं है। तो विवेक होने से वैराग्य है। विवेक है वो क्या है कि चैतन्य सत्य है और चित्त असत्य है। चैतन्य नित्य है, चित्त अनित्य है। और चैतन्य है तो वो क्या है, स्थिर है, निश्चल है, और ये चल वाला सतत बदलता है, फिरता है। चैतन्य ही रहता है, वो स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से कुछ होता नहीं, माँ चैतन्य प्रकाश, परब्रह्म परमात्मा। तो फिर विवेक होने से वैराग्य होता है। वैराग्य माने चित्त कुछ नहीं है। फिर आत्मज्ञान होता है। ज्ञान माने चैतन्य सब कुछ है। वैराग्य माने जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, और ज्ञान माने जो सब कुछ है वो सब कुछ है। तो फिर अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर सब कुछ है, उसके चलन का भ्रम और तरंग का भ्रम वो कुछ नहीं है, वो अपीयरेंस है, विवर्त है, दिखावा मात्र है। तो सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है। तो स्फुरण जो दिख रहा है तो वो भी स्वरूप से महासागर है, तत्वतः सत्यतः तो वो महासागर है, लेकिन स्फुरण के भ्रम रूप से वो कुछ नहीं है। चलन और तरंग और उसका उत्पत्ति स्थिति लय, वैसे चलन माने प्राण और तरंग माने चित्त और उसका नाम रूप उत्पत्ति स्थिति लय, तो वो महासागर रूप से सब महासागर है, लेकिन विवर्त रूप से, आभास मात्र रूप से, ब्रह्म मात्र रूप से वो कुछ नहीं है। चलन, प्राण और चित्त, संकल्प और उसका नाम रूप उत्पत्ति स्थिति लय, ये दृष्टा दृश्य, ये सब ये कुछ नहीं है। तो चिदाकाश रूप से सब चिदाकाश है, आभास रूप से सब कुछ नहीं है, ऐसा। तो यहाँ चुटाला सिक्योदस को, वशिष्ठ राम को ये तत्वबोध कर रहे हैं कि ये सारा का सारा पूरा पूरा अनंत संपूर्ण अस्तित्व है। तो उसमें तत्व क्या है, सत्य क्या है, तो वशिष्ठ बताते हैं राम को चैतन्य, ऐसा। और चैतन्य है उसमें स्फुरण बोलते, स्फुरण बोलते तो माने जल में जैसे चलन होने से जल ही अपने में एक कुछ न हो ऐसे अलग रूप में, मन तन्म रूप में, उसके उत्पत्ति स्थिति लय रूप में भासता है, लेकिन जल ही है और निराकार है। और ये आभास आकार विकार है, वो खाली अपीयरेंस है, दिखावा मात्र है, वो कुछ नहीं है। तो सब चैतन्य ही है। तो चैतन्य में जो चलन का भ्रम होता है उसको शक्ति कहते हैं, माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, मूला विद्या कहते हैं। तो चलन का भ्रम भी कुछ नहीं है, और चलन के भ्रम से चैतन्य में, महाचैतन्य प्रकाश में, जो परब्रह्म परमात्मा में चलन के भ्रम से सृष्टि स्थिति प्रलय का भ्रम होता है, जैसे तरंग का उत्पत्ति स्थिति लय भ्रम। लेकिन परब्रह्म रूप से सब परब्रह्म है, लेकिन भ्रम रूप से सब कुछ नहीं है। ऐसा 0-0 डायरेक्ट, नो इमीडिएट, 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज, समझ में आता है। तो यदि आप ये सबको परब्रह्म परमात्मा रूप से यदि जानते हैं और अनुभव करते हैं और रहते हैं, तो सब सत्य है, सब परब्रह्म है, सब परमात्मा है, सब परम चिदाकाश है, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, अखंड सच्चिदानंद है। सत माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, चित माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, आनंद माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद। ऐसा वो कोई चलन का भ्रम से, जो तरंग का भ्रम हो रहा है प्राण और चित्त, उससे बना हुआ कोई जीव नहीं, कोई जगत नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई नाम रूप नहीं, कोई उत्पत्ति स्थिति लय नहीं। जो दिख रहा है दृश्य उसमें कुछ नहीं।
तो शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों तरसरेणु जैसा भास है। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। मैं स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं। जो है सो है। तो महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। सब कुछ है ही सब कुछ है। कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है। इसलिए तो पूर्ण ब्रह्म टोटालिटी में पूर्ण है और माया टोटालिटी में शून्य है। माँ माने नहीं और या माने जो। तो परमाकाश महापूर्ण, महामाया, महाशून्य। तो ये वशिष्ठ में ही मिलता है। बाकी सब जगह सब मिक्स होता है। द्वैत भी बोलते हैं, अद्वैत भी बोलते हैं, अधिष्ठान भी बोलते हैं, अध्यस्थ भी बोलते हैं, अध्यस्थ भी बोलते हैं, अध्यारोपित भी बोलते हैं, हर अधिष्ठान भी बोलते हैं, कल्पित भी बोलते हैं, अधिष्ठान भी बोलते हैं। ऐसा द्वैत अद्वैत दोनों ऐसा चलता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। परमाकाश निरंजन, निराकार, निर्विकार। चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत। परमाकाश अनंत, संपूर्ण अनंत, सर्वतः केंद्र विनानु अनंत तेज घन परमाकाश। पूर्ण ब्रह्म अनंत तेज घन, अनंत चिद घन परमाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, शून्यभास, अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। ये सब जो स्पंद ब्रह्म है, जिसको शक्ति कहते हैं, माया कहते हैं, जिसको प्रकृति कहते हैं, अविद्या, मूला विद्या कहते हैं, वो कुछ नहीं है। वो ब्रह्म मात्र है। और पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद परम सत्य है, परम तत्व है। तो वो परम आत्मा है। ऐसा वो परम चिदाकाश है। तो ये जो परम सत्य परम तत्व है, परम चिदाकाश, उसी का यहाँ प्रकाश हो रहा है। और द्वैत ब्रह्म कुछ नहीं है, कोई वैकल्पिक ब्रह्म। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। तो जो महाचैतन्य प्रकाश है, ये सारा का सारा पूरा का पूरा भरपूर है, अनंत भरपूर, और कोई जगह खाली नहीं। और उसमें विकल्प वैकल्पिक ब्रह्म के लिए जगह नहीं। तो ऐसा महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, वो स्वसंवेद्य अपने से अनुभव में आने वाला है। माने महाचिदाकाश अनुभव, महाचिदाकाश। वो सदाशिव ने वशिष्ठ को कैलाश में कहा कि स्वप्रकाश से अपना अनुभव, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, स्वप्रकाश। तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश है, वो ही स्वसंवेद्यपना है। महाचिदाकाश अनुभव, महाचिदाकाश। सूर्य अनुभव, सूर्य। आकाश अनुभव, आकाश। नर्मदा अनुभव, नर्मदा। यह मैं न रहे, मैं बगैर भी वो है, और वही उसका अनुभव है। तो मैं जन्मा नहीं था तो नहीं था, ये देह शांत हो जाता है तो नहीं रहता है। तो अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है। देह मैं हूँ, ये अहंकार है। और अंदर जो साक्षी परमात्मा है, साक्षी वो परमात्मा है जो कुटस्थ चैतन्य है, जो सब जानता है। तो उसमें देह का भ्रम नहीं है, देह मैं हूँ, ये ईगो अहंकार का भ्रम भी नहीं है। और साक्षी परमात्मा है। फिर उसमें मैं नहीं है, ये देह का मैं भी नहीं है, और परमात्मा में भी मैं नहीं है। तो केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है। केवल पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है। अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश ही है। तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो जब अहंकार का भ्रम नहीं रहता है, वहाँ महाचिदाकाश माने पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। अहंकार का भ्रम, देह मैं हूँ, यही आवरण है। देह में नहीं है तो वही निरावरण ही है, वो तो है ही। देह में वो भ्रम है, वो भी वहाँ भी वो नहीं है। और महाचिदाकाश है, वो चलन का भ्रम नहीं है, तरंग का भ्रम नहीं है, प्राण चित्त का भ्रम नहीं है, मैं जगत दृष्टा दृश्य भ्रम नहीं है। फिर भी वहाँ महाचिदाकाश है। भ्रम हो तो भी कुछ नहीं है, और महाचिदाकाश आवरण में हो तो भी महाचिदाकाश ही है। और आवरण कुछ नहीं है, वो भ्रम है, वो असत्य है, वो नहीं है। ऐसे अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है। और महाचिदाकाश पूर्ण सत्य है, पूर्ण चैतन्य है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण शांति है, पूर्ण समता है, अनंत पूर्णता है, और पूर्ण तृप्ति है, पूर्ण संतोष है, पूर्ण समाधान है, पूर्ण कल्याण है। तो महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश है। तो ऐसा कहते सर्वत्याग माने क्या? राजा तुमने महल का त्याग किया, वो सर्वत्याग नहीं है।
तुमने झोपड़ी का त्याग किया, वो कुटीर का, वो भी सर्वत्यागी है। तुम देह का त्याग करने जा रहे हो, वो भी सर्वत्यागी है। जिससे ये भ्रम ये सब हो रहा है वो चित्त है, संकल्प कल्पना है, और वो परब्रह्म में कुछ नहीं है। तो तुम संकल्प कल्पना का त्याग करो, चित्त का त्याग करो, वो सर्वत्याग है। फिर ऑटोमेटिकली जो जो पाया का भ्रम है, नींव का भ्रम, जो फाउंडेशन का त्याग करो तो इमारत का त्याग हो जाता है। तो ये सृष्टि रूपी इमारत है, वो जो संकल्प कल्पना है उसकी पर बनी हुई है। तो तुम संकल्प कल्पना का त्याग करो, चित्त का त्याग करो, वो संसार त्याग है, वो सर्व त्याग है। तुम खाली देह का त्याग करो, वो सर्व त्याग नहीं हो, तो फिर से देह बना लेगा। जब वासना रहेगी, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म, जिसका जन्म हो उसका मृत्यु निश्चित है, और वासना है तो मृत्यु है, उसका जन्म निश्चित है। तो अविद्या वासना का कार्य चित्त है। जैसे वहाँ पे वराल है वो जल बनती है, जल है वो बर्फ बनता है, वैसे अविद्या है मूला विद्या, कि जो आत्मा को नहीं जानना, परमात्मा को नहीं जानना, परब्रह्म को नहीं जानना, चिदाकाश को नहीं जानना, तो मूला विद्या है। तो वही फिर वासना माने सूक्ष्म कल्पना होती है, फिर वही चित्त होता है, वो स्थूल कल्पना होती है, और वो स्थूल होती है घटों के, जैसे वराल होती है वो जल होती है, जल होता है बर्फ होता है, वैसे सेम थिंग। तो अविद्या कारण है, वासना उससे थोड़ा स्थूल है, चित्त उससे थोड़ा स्थूल है, फिर उसमें से अहंकार स्फुरता है, वो उससे थोड़ा स्थूल है, और उसमें जगत स्फुरता है, वो ज़्यादा स्थूल है। ये दृश्य है। तो ये दृश्य है, उससे सूक्ष्म अहंकार है, उससे सूक्ष्म चित्त है, उससे सूक्ष्म वासना है, उससे सूक्ष्म अविद्या है। और सदाशिव वशिष्ठ को कहते हैं, शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं, अविद्या है ही नहीं ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय है। शास्त्र गुरु आत्मा को नहीं प्रकाशते हैं, आत्मा स्वयं प्रकाश है और अपने प्रकाश से जाना जाता है, दूसरा प्रकाश नहीं है। वशिष्ठ राम को कहते हैं, पुष्प मसलने में थोड़ा भी परिश्रम लगता है, आत्मा को जानने में उतना भी परिश्रम नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है और अपने प्रकाश से जाना जाता है। तो जो अविद्या है ही नहीं ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय है। शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं, और आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश से जाना जाता है, दूसरा प्रकाश नहीं है। तो शास्त्र गुरु आत्मा को नहीं प्रकाशते हैं। फिर वो भी राम ने पूछा वशिष्ठ को, फिर शास्त्र गुरु का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन 12 तक है। जब तक आपको आप निष्काम कर्म से, निष्काम कर्मयोग से चित्त शुद्धि हुई, निष्काम उपासना से आपका शुद्ध चित्त एकाग्र हुआ है, अंतर्मुख होने को तैयार, फिर आपका साधन चतुष्टय है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा संबंध। फिर आप सत्संग और सदगुरु से श्रवण करते हैं आत्मा का स्वरूप का। वो श्रवण करने से अभी बाहर का तो आपका ये विवेक वैराग्य हो गया कि आत्मा सत्य और नित्य है, और ये अनात्मा है सब, ये जीव जगत को अनात्मा चिदाभास आभास विवर्त वो असत्य है, तो वहाँ तो वैराग्य हो गया। अभी आप जो बाहर है तो अभी आप पूछ रहे हैं आत्मा का स्वरूप, तो आपको श्रवण है तब तक शास्त्र गुरु है, फिर मनन में आप अंदर जाते हैं, अंतर्मुख होते हैं, डाइव डीप, अंदर डूब के मानना है। तो जहाँ से अहम स्फुरा है, जैसे महासागर में जहाँ से तरंग स्फुरा है, तो तरंग जहाँ स्फुरा है तो वहाँ तरंग नहीं है और महासागर है। वैसे चित्त या अहंकार या जहाँ से स्फुरा है तो वहाँ ये चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, वो अनंत महाचैतन्य प्रकाश महासागर है, परब्रह्म परमात्मा महासागर है, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है, ऐसा। तो सब क्लियर है। तो माने फिर अंतर्मुख वृत्ति होती है, मनन में गए तो फिर वहाँ शास्त्र गुरु नहीं है, ये वहाँ फिर अहंकार गिरने लगता है, जगत तो बाहर रह गया, दृष्टा अभी अंदर जा रहा है, दृश्य बाहर रह गया, तो वो भी चित्त है, वो संकल्प कल्पना है। तो मनन में वो शुद्ध और सूक्ष्म होती है, श्रवण मनन में परिणत होता है, फिर मनन वो उससे भी और डीप जाएगा, शुद्ध सूक्ष्म तो निधि ध्यान है, तो गहरा ध्यान चिंतन है, मेडिटेशन डीप, तो वो भी शुद्ध सूक्ष्म होगा, तो निर्विकल्प समाधि है। तो रमण 2 बात बताते हैं, केवल निर्विकल्प और सहज निर्विकल्प। जैसे बकेट में जल है और कुएं में जल में डुबोया, तो जल दोनों का, बकेट का और कुएं का एक है, उसको केवल निर्विकल्प कहते हैं। उसमें से भी उत्थान होगा तो भी जो बकेट का उपाधि है, कल्पना है, वो नहीं रहेगा, स्वयं जल है, स्वयं चैतन्य है,
तो हम मन वासना का क्षय होगा, तो ये द्वैत का क्षय होगा, दृष्टा दृश्य का बाधित होगा, वो तूर्य रहेगा साक्षी। जागृत स्वप्न सुसुप्ति से रहित उससे पर तो तूर्य है, साक्षी है। और फिर यदि बकेट नहीं है और बकेट का जल भी बस कुआं का जल ही है, तो फिर वो सहज निर्विकल्प है, निर्विकल्प समाधि। और फिर वो केवल निर्विकल्प नहीं, वो सहज निर्विकल्प। फिर वहाँ तो वो यही रहा है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति और अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति। तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो सहज निर्विकल्प जो रहा है तो वो नहीं रहा है, क्योंकि वो तो गिल गया। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि नमक की पुतली समुद्र मापने को गई ऐसे ही गिल गई, खबर आया ही नहीं कि समुद्र कितना गहरा है। तो इसे अहम रूपी जो नमक की पुतली है तो वह महाचिदाकाश महासागर में गिर जाती है, तो वह महाचिदाकाश महासागर ही है, दूसरा का हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। द्वैत या अहम या चित्त या दृश्य या कल्प या स्वप्न या भ्रम कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। और महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। लेकिन जिसको ये चित्त शुद्ध होता है, चित्त एकाग्र होता है, विवेक वैराग्य होता है, शम दम मनोज इंद्रिय होता है, श्रवण मनन निधिध्यासन होता है, फिर वो जैसा बहिर्मुख में से अंतर्मुख होता है, एक्सट्रोवर्ट में से इंट्रोवर्ट, अंतर्मुख होकर लीन होता है, वहाँ परमात्मा रहा है। यहाँ बाहर रह के जीव भाव में रहते के, देह भाव में रह के, ये संकल्प कल्पना में रह के, चित्त में रह के, जगत में रह के, दृष्टा दृश्य में रह के, मैं मेरा में रह के, फिर परमात्मा बोलने से परमात्मा नहीं है, परमात्मा शब्द नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य शब्द नहीं है, वैसे परमात्मा अनंत चैतन्य प्रकाश है, वो शब्द नहीं है। जो ब्रह्म है वो अनंत चैतन्य प्रकाश है, वो शब्द नहीं है। पूर्ण ब्रह्म अनंत तेज घन, अनंत चिद घन, वैसे वो तेज है, ज्योति है, प्रकाश है, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति स्वयं महाचिदाकाश आँखों एकलो प्रकाशे छे, आँखों अनंत एक ज महाचैतन्य प्रकाश छे। तो ये है सब कुछ, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। अहम रहता है तब तक उसका अनुभूति नहीं होती है, और अहम उसमें लय होता है उसका। जैसे रमन कहते हैं नमस्कार माने क्या, ये पोस्चर नहीं जैसे हम नमते हैं वो नहीं, अहंकार का आत्मा में लय, यही नमस्कार है। तो वैसे अहंकार का आत्मा में लय वही समाधि है। तो कहते तू महल को त्याग किया, राज्य को त्याग किया, वो त्याग नहीं है। तो अभी वन में आया, तूने झोपड़ी का त्याग किया, वो भी त्याग नहीं है, सर्व त्याग नहीं है। अभी तू शरीर का त्याग करने जा रहा है राजा, तो वो भी सर्व त्याग नहीं है। ये सब कल्पना या भ्रम या मोह या अविवेक अविचार या अविद्या ज्ञान माया या तर्क संशय शंका या वहम या अंधश्रद्धा, ये सब का मूल कारण चित्त है, संकल्प कल्पना है। और ये भ्रम कब टलता है, जब तू अंदर अपने को जानता है, सच्चा अपने को। रमन कहते हैं ये मैं देह हूँ, ये खोटा मैं है, और अंदर आत्मा है, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है, वो सच्चा मैं है। जब तू तेरे सच्चे स्वरूप को जानेगा, वहाँ तुझे चित्त नहीं मिलेगा, वो तुम्हारा सर्वत्याग हो गया। फिर ग्रहण भी नहीं और त्याग भी नहीं, चित्त सापेक्ष ग्रहण और त्याग कहा है, फिर चित्त है ही नहीं, फिर असमाधि भी नहीं है, समाधि भी नहीं, समाधि भी चित्त सापेक्ष है। वो यहाँ शब्द आया, उस पर हम चल रहे हैं कि महात्मा के लिए वो चित्त है, और समाधि देने वाला है, माने चित्त नहीं रहता है और स्वरूप रहता है, जो अपना अनंत पूर्ण जो परम चैतन्य स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, तो वो रहता है। तो महात्मा को कैसे समाधि देता, उसको वैराग्य है। वैराग्य आत्मज्ञान परमाकाश परम शांति, और वासना भोगों धन गद्दा मजूरी दुख अशांति। वैराग्य आत्मज्ञान परमाकाश परम शांति, वासना भोगों धन गधा मजूरी दुख अशांति। यदि चित्त का भ्रम है और चित्त के भ्रम में से अहम और जगत स्फुरित होता है, चित्त चैतन्य में से स्फुरित हुआ है और उसके साथ प्राण स्फुरित हुआ है, प्राण है वो जीव है, प्राण की वजह से उसको जीव कहते हैं। चित्त को संकल्प कल्पना कहते हैं, वो अहम रूप से स्फुरित होता है और अहम जगत रूप से स्फुरित होता है। फिर उसमें देह भी स्फुरित होता है, देह दृश्य, फिर मैं मेरा होता है। देह को अपने साथ जोड़ने से, उसमें तादाद में अभिनय अभिमान करने से देह मैं हूँ,
फिर देह का आकार पुरुष होगा तो मैं पुरुष हूँ, देह का आकार स्त्री होगा तो मैं स्त्री हूँ, ऐसा। फिर से यदि वासना आगे बढ़ती है बहिर्मुख वृत्ति से चित्त की, तो दारेशना पुत्र इतना वित्त इतना लोक इतना, स्त्री की कामना, पुत्र की कामना, धन की कामना, ये लोग परलोक के इंद्रियों के विषय भोग की कामना। अभी यदि वशिष्ठ मिले तो फिर उससे क्या होता है, क्या ये तो असत्य है, अनित्य है। फिर ये क्या, परमात्मा नित्य है, परमात्मा सत्य है, परब्रह्म, परम चिदाकाश, महाचिदाकाश, परमाकाश, ये परम चैतन्य है, परम प्रकाश, परम सत्य, परम आनंद, परम शांति, परम पूर्णता, परम समता, परम तृप्ति, परम संतोष, परम समाधान, परम कल्याण, परम ऑल एंड सोल, ऑल इन ऑल, पूर्ण ब्रह्म, ट्रुथ एब्सोल्यूट। तो ये सत्य मालूम पड़ता है तो फिर वो अंतर्मुख होता है। जो बहिर्मुख है तो वो चित्त है, और जो अंतर्मुख है तो वो चैतन्य है। तो वशिष्ठ राम को कहते हैं शुद्ध चित्त ही ब्रह्म, मलिन चित्त ही जगत। मलिन चित्त माने चित्त प्लस वासना इक्वल टू मलिन चित्त, चित्त माइनस वासना इक्वल टू शुद्ध चित्त, तो फिर वो ब्रह्म ही है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा एक। शुद्ध मन में से आए वो ईश्वर की ही वाणी। तो शुद्ध मन कहाँ होता है कि जिसमें राज्य भोग लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति नहीं होती है, जिसमें अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति नहीं होती है, जिसमें द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति नहीं होती कि मैं ये इस देह में ये अमुक जीव हूँ, मैं इस देह में अमुक ये अमुक व्यक्ति हूँ, पुरुष देह हूँ या स्त्री देह हूँ, ये मेरा घर है कि धन है, तो ये मेरा प्रजा है, प्रजा का प्रजा है, ये मेरा प्रॉपर्टी है। तो ये भ्रम नहीं होता है। जो शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा है, फिर वो मन नहीं है, फिर वो बुद्धि नहीं है, फिर आत्मा ही है, फिर वो चैतन्य है। तो ये सब में कोई ऐसा पूछे कि अनंत संपूर्ण अस्तित्व जो प्रकाश रहा है, तो कौन प्रकाश रहा है? वो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश रहा है। वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति प्रकाश रहा है। तो फिर वो ऐसा ये सृष्टि रूप में, जगत रूप में, ब्रह्मांड रूप में, विश्व रूप में, संसार रूप में, ये अपना सूर्यमंडल, नवग्रह उपग्रह सबका बंधारण, धारण, पोषण, गतिविधि, ये आकाश गंगा, उसमें तारा जैसे दिखते तो सूर्य से भी महान सूर्य हो। अभी तो एस्ट्रोनॉमी से सब जान रहे कि अनंत महासूर्य है, अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, अनंत कोटि महासूर्य, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय। तो ये क्या है? तो ये प्रातिभाषिक प्रकाश है, प्रतिबिंबित प्रकाश। और जब परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, वो बिंब प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। सदाशिव को वशिष्ठ ने पूछा कि सच्चा देवार्चन क्या है? तो वशिष्ठ सदाशिव ने कहा कि वशिष्ठ सच्चा देव कौन है तुम जानते हो? सच्चा देव पूजन। तो मैं भी सच्चा देव नहीं हूँ, सदाशिव कहते हैं। विष्णु ब्रह्मा इंद्रादिक कोई सच्चा देव नहीं है। वायु अग्नि चंद्र सूर्य कोई सच्चा देव नहीं है। कोई ब्राह्मण राजा रुद्र अनवशिष्ठ तुम भी सच्चे देव नहीं हो। आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश से ही सच्चा देव है। उपशम, बोध, समता, संतोष, शांति ये पूजन के पुष्प है। और ये चैतन्य देव का ये अखंडित बोध, यही उसका पूजन है। अविवेकी अभिज्ञानी बोले कृत्रिम मूर्ति में कृत्रिम पुष्पों से कृत्रिम पूजन करे। हे वशिष्ठ मुनि, तुमको ऐसा कृत्रिम पूजन की जरूरत नहीं है। वशिष्ठ ये सदाशिव का संवाद राम को बताते कहते हैं, जब से महादेव ने मुझे चैतन्य देव का पूजन बताया है, तब से मैंने जड़ देव का पूजन छोड़ दिया है। जड़ देव का पूजन छोड़ दिया है, ये बात है। कहने का क्या है कि यहाँ सर्वत्याग माने क्या? वो बाहर ये मैं हूँ, तो ये मैं का भी त्याग, वो सर्वत्याग है। ये मैं भी चित्त का भ्रम है, और चित्त है तो अविद्या वासना का भ्रम है। और अविद्या अपने में कोई भ्रम नहीं है, कारण भ्रम नहीं है, इसलिए सूक्ष्म भ्रम नहीं है और स्थूल भ्रम नहीं है। अविद्या नहीं है इसलिए वासना नहीं है, इसलिए चित्त नहीं है, इसलिए अहम नहीं है, इसलिए जगत नहीं है। तो रमण भी मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ? तो अपने बताते हैं ये स्थूल देव तो पंचभूत है, वो तो जड़ है, वो तो अज्ञान है, मैं उसको जानता हूँ। फिर मैंने पंचभूत आकाश वायु तेजल पृथ्वी या सप्त धातु, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। फिर सूक्ष्म देह में तो 5 कर्मेंद्रिय है, हाथ है, पैर है, मलमूत्र त्याग किए, पानी के, उसको मैं जानता हूँ। वो तो जड़ है, अज्ञान है, वो तो नहीं जानता है। फिर ज्ञानेंद्रिय तो श्रोत्र चक्षु स्पर्श रत्ना ग्रहण, तो उसको भी मैं जानता हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ। जो बाधित होता है
वो नहीं है, और जो रहता है वो है। जानने वाला रहता है, सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। तो जानने वाला जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान। फिर बोलता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो वर्णन करता है, संकल्प भी करता है, उसको मैं जानता हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो बाधित है। फिर बुद्धि जो निश्चय करती है, निश्चयात्मी का, तो वो मैं नहीं हूँ, वो बाधित है। फिर चित्त चिंतन करता है, स्मरण रखता है, उसको मैं जानता हूँ, वो जड़ है, वो अज्ञान है, वो नहीं है। ये सब यदि काम करते हैं तो वो जो स्वयं प्रकाश जो है, आत्मा जो है, चैतन्य जो है, ज्ञान जो है, मोक्ष है, उसका आभास पड़ने से वो काम करते हैं। और वो आभास उसमें से निकल जाता है तो देह शांत हो जाता है। तो वो आभास चैतन्य है, चिदाभास। जीव है वो प्रतिभास है, वो आप चिदाभास है, वो भी चैतन्य नहीं है। तो फिर चित्त, फिर अहंकार मैं करता है, उसको भी मैं जानता हूँ, तो वो भी नहीं है, बाधित है, वो मैं नहीं हूँ। फिर अविद्या ज्ञान, तो जिसमें कुछ जानने में नहीं आता है, तो मैं तो जानने वाला हूँ, मेरे में वो भी नहीं है, बाधित है। फिर मैं जानने वाला कौन हूँ? शुद्ध ज्ञान, वो मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। उसका स्वरूप क्या है? तो वो सच्चिदानंद है, तो मैं सच्चिदानंद हूँ। तो रमन कहते हैं पूरा वेदांत का सार 4 शब्दों में समाया जाता है। देहो न हम कोहम सोहम, मैं देह नहीं हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारण। और मैं कौन हूँ? तो मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। ये आत्मज्ञान है, ये आत्मविद्या है, ब्रह्म विद्या है, आत्म साक्षात्कार है, स्वयं प्रकाश है। सेल्फ इज एवर रियल एवरीवेयर, सेल्फ इज नॉट टू बी न्यूली रियलाइज्ड एनीवेयर। स्वयं मां चिदाकाश है, सदा स्वयं प्रकाश सर्वत्र। स्वयं मां चिदाकाश नहीं करना है नए सर से स्वयं प्रकाश कहीं भी। स्वयं मां चिदाकाश है, सदा स्वयं प्रकाश सर्वत्र। स्वयं मां चिदाकाश नहीं करना है नए सर से स्वयं प्रकाश कहीं भी। कोई है और उसको आत्म साक्षात्कार हो, उसके पहले भी मां चिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। उसका आविर्भाव हुआ, उसका तिरुभाव हुआ, जो तरंग उत्पन्न हुआ उसका लय हुआ। तो वो नहीं, महासागर नहीं है, महासागर महासागर है। मां चिदाकाश है, जो है सो है। कोई व्यक्ति तो उसको कहे मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ, तो मां चिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। तो वो अहंकार छोड़ने से, वो व्यक्ति अहंकार छोड़ने से वो मां चिदाकाश वहाँ प्रकाश है, वो मां चिदाकाश स्वयं प्रकाश आत्मा साक्षात्कार है। वो व्यक्ति वो तो वहाँ नहीं है, वो तो बाधित है, उसका अहंकार, तो उसका साक्षात्कार नहीं है। तो गफलत यहाँ होती है कि मुझे साक्षात्कार हुआ है। मां चिदाकाश स्वयं प्रकाश आत्मा साक्षात्कार, वो व्यक्ति तो बाधित है। अहंकार रखे तो फिर वो व्यक्ति, वो तो अहंकार का भ्रम हुआ, तो वो तो चित्त का भ्रम हुआ, तो वो तो अज्ञान हुआ, वो तो नहीं है। तो अब यदि अहंकार नहीं रहता है तो मां चिदाकाश स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं आत्म साक्षात्कार है। व्यक्ति नहीं है वहाँ, तो व्यक्ति नहीं रहती है तब मां चिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। अहम रहता है तो व्यक्ति रहती है, तो मां चिदाकाश आवरण में रहता है। और समाधि में अहंकार का लय होता है, माने व्यक्ति का लय होता है, नाम रूप का, उत्पत्ति स्थिति लय का, चित्त का। तो चित्त नहीं रहता है, वो तो संकल्प कल्पना है। वहाँ मां चिदाकाश तो है ही पहले से, प्रथम परमात्मा प्रथम से है, नया आता नहीं है। लेकिन कोई परमात्मा अपने में परमात्मा ही है, वो अपने में दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है। तो दूसरा वो है, वो चित्त का भ्रम है, और वो चित्त का त्याग वो सर्व त्याग है। फिर चित्त नहीं है इसलिए त्याग भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। संकल्प कल्पना वो भ्रम हुआ, वो ग्रहण है, और संकल्प कल्पना वो भ्रम नहीं है तो वो त्याग है। लेकिन संकल्प कल्पना है ही नहीं, इसलिए ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। मां चिदाकाश ही मां चिदाकाश जो है सो है। तो अभी कहा कि फिर महात्मा के लिए वो समाधि रूप है, माने चित्त नहीं है। तो वशिष्ठ कहते हैं ध्यान योग शून्य है लेकिन पूर्ण की प्राप्ति कराता है। तो चित्त की त्रिपुटी है, ध्याता ध्यान दे। तो हम ध्यान, परमात्मा का ध्यान धरने वाला, हमारा परमात्मा का ध्यान, और हमारा ध्यान का विषय परमात्मा, ये त्रिपुटी जो केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसमें त्रिपुटी नहीं है, 3 भेद है। जैसे सूर्य है तो उसमें 3 भाग भेद नहीं है। एक सूर्य का एक भाग सूर्य का ध्यान धरने वाला, सूर्य का एक भाग उसका सूर्य का ध्यान, और उसका सूर्य का ध्येय, सूर्य उसका ध्येय, ध्यान का विषय। तो सूर्य अखंड है, ज्योति है। वैसे परमात्मा अखंड ज्योति है, परम ज्योति है, अनंत अखंड अभेद है, मां चिदाकाश ज्योति। तो उसमें त्रिपुटी नहीं है। तो ध्यान योग शून्य है। वहाँ चित्त जो है वो संकल्प कल्पना त्रिपुटी भेद में, ध्याता ध्यान ध्येय
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, उपासक उपासना उपास्य, पूजक पूजा पूज्य देव, भोक्ता भोग भोग्य, ये कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं। तो ध्यान योग शून्य माने चित्त वहाँ शून्य है निर्विकल्प समाधि में। तो फिर वहाँ अहम रूप जीव नहीं है, जगत नहीं है, दृष्टा दृश्य नहीं है, साक्षी साक्ष्य नहीं है, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो यही परम पद पूर्ण विश्रांति है। यही राम कहते हैं मुझे ये सब दिख रहा है, उसमें कुछ सार नहीं लग रहा है, मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए। पहला वैराग्य प्रकरण सब बातों को एक एक करके बताता है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। फिर कहते हैं मुमुक्षु प्रकरण दूसरा, उसमें मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। तो वशिष्ठ कहते हैं, फिर राम कहते हैं कि आप ऋषि मुनि लोग, सिद्ध लोग मुझे इसमें सहाय करें तो ठीक है, नहीं तो मेरे विचार से मैं यही लूँगा, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये देह का नाम राम है, मैं देह नहीं हूँ, इसलिए मैं राम नहीं हूँ। लोग राम राम करते हैं, और राम कहते हैं देह का नाम राम है और मैं देह नहीं हूँ, इसलिए मैं राम नहीं हूँ। लोग जानते ही नहीं है कि राम क्या है। ऐसा राम कहते हैं मैं राम नहीं हूँ, उसका मतलब मैं देह को जानने वाला हूँ। देह तो जड़ है, ये तो ये व्यवहार का जो चित्त जो संकल्प कल्पना से व्यवहार का भ्रम रूप में, दृश्य का भ्रम रूप में भास रहा है चित्त, उसमें ये देह भास रहा है। वो संकल्प कल्पना देह रूप से बना है, वो नाम रूप भी उसका कल्पना है। मैं तो उसको जानने वाला हूँ, मेरे में वो बाधित है, ये मैं नहीं हूँ। तो साक्षी तुरीय रूप में तो राम रहे ही हैं, उसको तुरीयातीत चाहिए। ऐसा तो भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है, वो तुरीयातीत है। फिर उसमें भाग भेद नहीं है, भेदाभेद नहीं है कि मैं साक्षी हूँ और ये साक्ष्य है, मैं जानने वाला हूँ, ये मेरा जानने का विषय है, ये भी नहीं है। मैं चैतन्य हूँ, ये प्राण और चित्त मेरे जानने का विषय है। अरे अहम जीव रूप जीव और जगत ये दृष्टा दृश्य ये मेरा विषय है, लेकिन मेरे में ये बाधित है। तुर्य में तो बाधित है ही, लेकिन ये बाधित है, वो जब तक भासता है तब तक तुर्य है, और बाधित नहीं भासता है तो तुर्यातीत है। तो वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। वो केवल स्वस्वरूप केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। ऐसा तो महात्मा को समाधि में माने चित्त नहीं रहता है, वो समाहित हो जाना। जैसे चलन और तरंग महासागर के जल में समा जाते हैं, वो समाधि है। तो चित्त महात्मा को समाधि देता है, माने चित्त खुद नहीं रहता है, और महात्मा भी चित्त से वो महात्मा है, चित्त से वो ध्यान ध्याता ध्यान जय त्रिपुटी है, लेकिन फिर महात्मा नहीं है। और फिर महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर है, वो सहज निर्विकल्प है, उसमें विकल्प भी नहीं है, चित्त रूपी और जगत रूपी, और उसमें निर्विकल्प समाधि भी नहीं है। और वो सहज माने चित्त हुआ ही नहीं है, चित्त हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं, अहम हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं, दृश्य हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं। तो क्या है? तो केवल स्वस्वरूप केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। तो समाधि में चित्त महात्मा को समाधि उसका आनंद और शांति। तो वो आनंद और शांति क्या है? महाचिदाकाश परम आनंद परम शांति, महात्मा का नहीं, उसका असमाधि भी नहीं न समाधि भी नहीं। उसको चित्त का भ्रम है तो असमाधि, और चित्त का भ्रम का उपशम निर्वाण हो गया तो समाधि। लेकिन वो महात्मा भी वृत्ति है, वो भी चित्त की संकल्प कल्पना है कि यह मैं हूँ, मैं ये महात्मा हूँ, मैं ये गृहस्थ हूँ, या मैं ये सन्यासी हूँ, तो भी चित्त का संकल्प कल्पना है। अखंड ब्रह्म में अखंड ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं देह हूँ, यह विद्या वृत्ति है, और मैं आत्मा हूँ, विद्या वृत्ति है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं एक कांटा लगा है तो उसको निकालने दूसरा कांटा लाते हैं, उसको निकाल के दोनों कांटा फेंक देते हैं। वैसे अज्ञान कांटा लगा है तो ज्ञान कांटा ला के उसको निकाल के अज्ञान ज्ञान दोनों फेंक देते हैं। तो अज्ञान ज्ञान से पर है परम पद, और बंध मोक्ष से पर है परम पद। तो ये है परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति। वहाँ फिर असमाधि भी नहीं है, समाधि में नहीं है, वो चित्त सापेक्ष है। चित्त का ब्रह्म भास रहा है तो असमाधि, फिर प्राण भास रहा है तो जीव, फिर संकल्प का स्थूल देह बनता है तो ये देह, फिर संकल्प का दृष्टा दृश्य बनता है। तो वो सब चित्त है, और वो चित्त कुछ नहीं है, वही सर्वत्याग है। चित्त का त्याग करना नहीं है, चित्त का ग्रहण भी नहीं होता है। त्याग महासागर में चलन और तरंग और उत्पत्ति स्थिति लय, ये भ्रम का ग्रहण त्याग नहीं होता है, ये भ्रम है ही नहीं, और महासागर ही महासागर है। वैसे महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश है, ये चित्त भ्रम है ही नहीं, प्राण भ्रम है ही नहीं, जीव भ्रम, देह भ्रम, दृष्टा दृश्य भ्रम,
नाम रूप ब्रह्म, उत्पत्ति स्थिति लय ब्रह्म है ही नहीं, और जो भी कुछ है वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। जो शॉर्ट में देना है तो जो अहंकार का त्याग करता है वही संन्यास है। बाह्य संन्यास नहीं है। कोई घर से निकला, ये ले निकला शिक्षित राज्य से और घर से निकला राजा, फिर वन में कुटीर बनाया, कर्म उपासना किया, तप किया, तो वो भी नहीं। चुड़ा लगे थे, वो भी नहीं। तुम चित्त का त्याग मना अहंकार का त्याग। तो पहले तुमने ये सब त्याग किया, उसने कुटीर जला दिया, अपना आसन जला दिया, अपनी माला, अपना ये वो कमल सब, तो जिससे तुमने ये सब त्याग किया उसका भी तुम त्याग करो। अहम से तुमने ये सब त्याग किया, वो अहम का भी तुम त्याग करो, वो सर्व त्याग है। अब घर से निकले और विरजाओं की विधि, उसका विधि किया और भगवा पहन लिया और स्वामी नाम रख दिया और कुटीर में रहने लगे, आश्रम में रहने लगे, वो सर्व त्याग नहीं है। इसलिए रमण कहते हैं यदि तुम घर छोड़ के वन में जाओ तो तुम्हारा मन तुम्हारे साथ में रहेगा, तो वहाँ तुम अहंकार करो, बड़ा नहीं करोगे, उसकी क्या खातिर। इसलिए जहाँ रहते हो स्वाभाविक कर्म हो रहा है तो खाली आपको दो याद रखना है, अहंकार नहीं रखने का, अहंकार का त्याग करो, फिर मैं करता हूँ ये भ्रम का त्याग करो। तो बोलते ये व्यवहार कैसे, तो क्या ऑटोमेटिक है। सूर्य कैसे प्रकाशता है, वायु कैसे चल रहा है, धरती कैसे सबको धारण कर रही है, अग्नि कैसे तेज है, जल कैसे है, पृथ्वी कैसे है, ये सब आकाश कैसे हैं, तो मैं से नहीं है। अहंकार का भ्रम कुछ नहीं है और अहंकार का भ्रम का कर्तापना कुछ नहीं है। तो तुम ऐसे रहो तो तुम फिर अहंकार नहीं है और कर्तापना नहीं है, फिर ये माँ चैतन्य तो है ही, तो सब माँ चैतन्य है। तो ये जो स्पिरिट है, ये जो भाव है, तो वो तत्वबोध है जो है, उसको वो सम्यक, उसको यथार्थ जानना, उसका सम्यक अनुभव करना, फिर यही स्वरूप रहा है और दूसरा कुछ नहीं रहा है। तो ऐसे परम पद में पूर्ण विश्रांति है। मैं रह के वो नहीं होता है, अहंकार है वो भ्रम है। तो चित्त को अहंकार कहो, उसका त्याग सर्व त्याग है। जिससे तुम त्याग करते हो, समझ में आता है, वो अहंकार है, फिर उसका भी त्याग है, वो सर्व त्याग है। तुम बाह्य त्याग करो, संन्यास लो, स्वामी नाम रखो, घर छोड़ो, आश्रम या मंदिर या कुटीर में रहो, वो सर्व त्याग नहीं। तीर्थ में रहो, आप यज्ञ करो, तप करो, वो सर्व त्याग नहीं है। कर्मकांड उपासना, तो राजा तूने सर्व त्याग किया बाहर का, लेकिन अंदर का सर्व त्याग रह गया, तो कर्म उपासना में फंस गया, तो तेरा अहंकार बड़ा करने लगा। तो कोई गुरु किया, उससे तुम संस्कृत व्याकरण पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, और तुम कथा करने लगा, गुरु होने लगा, कथा का उपदेशक हो गया, करोड़ों ही तो तुम इकट्ठा करने लगा, तो त्याग हुआ कि क्या हुआ। तो ये बाह्य त्याग भी नहीं हुआ, ऊपर से बाह्य उपाधि जिसको बोलते हैं, झंझट झपा झमेला बढ़ा, अहंकार बढ़ा किया। तो अंदर से अहंकार का त्याग होता है तो बाहर कुछ भी परिग्रह नहीं होता है। बाहर परिग्रह होता है तो अंदर अहंकार है, ऐसा समझ आते हैं। तो गृहस्थ में भी है, तो बाहर से छोड़ के कहीं भी रहो, तो घर में था उससे भी तुमने बड़ा बनाया। घर में तो नहीं था कुछ, दाल रोटी था, रूखा सूखा, उसको घी लगाने के लिए भी नहीं था, और अभी तो तुम चीज़ और पनीर और मक्खन और घी आए, मजा है। फिर पाड़ा जैसा होके फट जाने का। हाँ, ये महामंडलेश्वर कहाँ गए ये वेदांताचार्य कहाँ गए। तो ये फटने के लिए नहीं है बाह्य त्याग, है ना, अंदर का अहंकार त्याग। ये वस्तु वसित में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है, सब मिक्स होता है सब जगह। तुम ये भी करो ना, वो भी करो ना, कुछ करना है ना, नहीं करना है। ये यहाँ कोई पूछते यहाँ क्या करना है, तो यहाँ इतना ही करना है कि कुछ भी नहीं करने का है। यहाँ क्या करने का है, उतना ही करने का है कि कुछ भी नहीं। क्यों कि महाचिदा का सब कुछ है, सब जगह है, उसमें क्या वो पूर्ण है, पूर्ण मदद पूर्ण विदम, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चितगण, उसमें कुछ होता ही नहीं है, कुछ करना नहीं है, पूर्ण ही है। और अहंकार का भ्रम, चित्त का भ्रम, ये शून्य है, कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं करना है। प्राण ने, चित्त ने, जीव ने, जगत ने, मैं मेरा ने, राग द्वेष ने, काम क्रोध लोभ ने, मोह मद मत्सर ने, आसक्ति ने, आशा फूटना ने,
अहम मन वासना नहीं, राज्य भोगोलक में ये कुछ नहीं, नहीं है उसका त्याग, त्याग नहीं है, नहीं है उसका ग्रहण, ग्रहण नहीं है उसके, वो तो अपने आप में अपने आप है, उसमें भी ग्रहण त्याग नहीं है। जो पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगण अनंत चितगण है वो तो अपने आप में अपने आप है, और उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं, उसका उसमें भी ग्रहण त्याग नहीं है। और ये चित्त का भ्रम, संकल्प कल्पना या अहंकार का भ्रम, ये भी कुछ नहीं है, तो उसका ग्रहण त्याग भी कुछ नहीं है। जहाँ ग्रहण त्याग कुछ नहीं है वहाँ पर ब्रह्म परम शांति है ना, ये तत्वानुभूति तत्वसार है नहीं, स्वानुभूति तत्वसार, ये तो ये परम शांति है जहाँ सब कुछ है पर ब्रह्म और कुछ नहीं है माया, तो ये परम शांति है ना। कई कई के मैंने माया का त्याग किया तो वो मैं है वही माया है, वो त्याग करने वाला पहले नंबर की माया है। वो पहले नंबर की माया त्याग करो तो दूसरा कुछ है ही नहीं, उसका सब है। तो मूल रखो और वृक्ष को काटो तो फिर वृक्ष खड़ा होगा, है ना। एक बार का काटा वृक्ष, फिर बाहर निकल के उससे भी बड़ा वृक्ष बन गया, संसार वृक्ष। ये भी संसार है, संसार भी एक संसार है, संन्यास भी एक संसार है, क्योंकि अहंकार से संन्यास होता है, और अहंकार नहीं रहता है तो ये ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, और पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार जो है सो है। महात्मा को ये चित्त समाधि देने वाला है, अज्ञानी को ये चित्त वासना से संसार में दुख अशांति देने वाला है। लेकिन ये चित्त नहीं है तो उसका तुम त्याग करो। कैसे त्याग करोगे? ये चित्त नहीं है वही उसका त्याग है। ये संकल्प कल्पना है, तुम संकल्प कल्पना न रखो तो चित्त नहीं है, बस वो चित्त का ग्रहण नहीं होता है, त्याग नहीं। महासागर में चलन और तरंग का ग्रहण त्याग नहीं होता है, महासागर ही है और चलन तरंग का भ्रम है ही नहीं। ऐसा चित्त प्राण का भ्रम है ही नहीं, जीव जगत का भ्रम है ही नहीं, और पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है ही है। चलो क्लियर? ढूंढता है, बताओ वो समाधि से શાંતિને નહીં પામેલો એ ચિત્ત જ અંદર મનન કરવાથી મન રૂપે અને પ્રાણોને ચલાવવાની ચેષ્ટાથી જીવ રૂપે થઈ જઈ બહાર અનેક દેહાદિક આકારો વડે જગત રૂપે સ્ફુરે છે। હે મહાત્મા શીખીદ્વત, એ ચિત્ત જ પોતાના સંકલ્પ વિકલ્પ આદિ વેપારમાંથી વિરામ ન પામવાને લીધે બુદ્ધિ, મહત્ત્વ, અહંકાર, પ્રાણ અને જીવ ઇત્યાદि તેવા તેવા ક્રિયાને અનુકૂળ પડતા નામો વડે કહેવામાં આવે છે। એ રીતે ચિત્ત જ સર્વરૂપ હોવાથી સર્વ શબ્દથી કહેવામાં આવે છે। इंग्लिश में इसको बता सकते हैं। इंग्लिश एड से बताएंगे। ऊपर के स्फीयर में ये परम चिदाकाश या पर ब्रह्म परमात्मा, नीचे के स्फीयर में ये पूरा दृश्य ब्रह्म, जीव जगत ब्रह्म। तो सेंटर में आएगा चित्त, दो स्फीयर होगा, ऊपर का राउंड, उसमें आपका पर ब्रह्म परमात्मा या परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। नीचे का स्फीयर में ये पूरा दृष्टा दृश्य ब्रह्म, अहम और जगत ब्रह्म, संसार ब्रह्म। तो सेंट्रल जॉइनिंग पॉइंट है दो स्फीयर का, वहाँ चित्त आएगा, एरो ऊपर जाएगा, समझ में आता है ना। तो चित्त अपने शुद्ध स्वरूप में चैतन्य है और वो परब्रह्म परमात्मा है। और फिर चित्त समझाते कि नहीं, उसमें चित्त में अज्ञान माने अविद्या ज्ञान मिक्स होने से वो ये पूरा संसार ब्रह्म है, ये दृष्टा दृश्य, ये जो दिख रहा है ना, ये तो चित्त अपने अधिष्ठान स्वरूप में है, समझे ना, शुद्ध स्वरूप में है। और चैतन्य है वो परब्रह्म परमात्मा है। शुद्ध चित्त ही ब्रह्म, मणि चित्त ही जगत। तो चित्त है तो वो अपने स्वरूप को नहीं जानता है कि खुद चैतन्य है, और वहाँ संकल्प कल्पना रूप में होता है, समझ जाते हैं। अविद्या वासना से वो चित्त है, वही एक संसार ब्रह्म है, अहम और जगत ऐसा। तो चित्त अविद्या वासना से ऐसा नीचे हो जाएगा, अविद्या वासना के भ्रम से, भ्रांति से, वो ये अहम और जगत भ्रम। और चित्त अपने
शुद्ध स्वरूप से, अधिष्ठान स्वरूप से, तो वो परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश है। ऐसा है कि नहीं? क्लियर? चलो શાંતિને નહીં પામેલું એ ચિત્ત જ અંદર મનન કરવાથી મન રૂપે અને પ્રાણો ચલાવવાની ચેષ્ટાથી જીવ રૂપે થઈ જઈ બહાર અનેક દેહાદિક આકારો વડે જગત રૂપે સ્ફુરે છે. હે મહાત્મા શ્રીગીતભાઈ, એ ચિત્ત જ પોતાના સંકલ્પ વિકલ્પ આદિ વેપારમાંથી વિરામ ન પામવાને લીધે બુદ્ધિ, મહત્તત્વ, અહંકાર, પ્રાણ અને જીવ ઇત્યાદિ તેવા તેવા ક્રિયાને અનુકૂળ પડતા નામો વડે કહેવામાં આવે છે. એ રીતે ચિત્ત જ સર્વરૂપ હોવાથી સર્વ શબ્દથી કહેવામાં આવ્યું છે. વળી તેનો ત્યાગ કર્યાથી સર્વ આધિઓ તથા વ્યાધિઓનો અંત આવે છે અને પછી સર્વ ત્યાગ સિદ્ધ થાય છે. चित्त के त्याग से सर्व आदि व्याधि का अंत आता है. चित्त रखकर सब आदि व्याधि का अंत नहीं आता है. समझे? चित्त का सर्व त्याग, संकल्प कल्पना का सर्व त्याग से सब आदि व्याधि उपाधि का अंत आता है. दूसरे कोई उपाय से वो खाली एक मोमेंटरी आपको थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन मूल में से आदि व्याधि उपाधि जाती नहीं है. लेकिन संकल्प कल्पना को पूरा, वो भ्रम का संकल्प भ्रम का पूरा त्याग करने से फिर आदि व्याधि उपाधि नहीं रहती है और परम शांति है. पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार, ऐसा है ना? क्लियर? आदि व्याधि એ રીતે ચિત્ત જ સર્વરૂપ હોવાથી સર્વ શબ્દથી કહેવામાં આવ્યું છે. વળી તેનો ત્યાગ કર્યાથી સર્વ આધિઓ તથા વ્યાધિઓનો અંત આવે છે અને પછી સર્વ ત્યાગ સિદ્ધ થાય છે. હે ત્યાગને જાણનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ મહાબાહુ શીખીદ્વય, ચિત્ત ત્યાગ એ જ સર્વ ત્યાગ છે એમ તત્વવેત્તાઓનું સમજવું છે. અને તે સિદ્ધ થવાથી શું સત્ય આનંદનો અનુભવ નથી થતો? થાય જ છે. ચિત્તનો ત્યાગ કર્યાથી બુદ્ધિના દ્વૈત અને અદ્વૈત ક્રમથી કાર્યનો કારણમાં લય પામીને તેમાં એક પ્રાણી બુદ્ધિ એ જ એક બુદ્ધિ. ચિત્તનો ત્યાગ કર્યાથી બુદ્ધિના દ્વૈત અદ્વૈત સર્વ પ્રકારે નાશ પામે છે અને પરમ શાંત, સ્વચ્છ, નિર્વિકાર એક બ્રહ્મ તત્વ જ બાકી રહે છે. આ સંસારરૂપી ધાન્ય ઉગવાનું ચિત્ત એ જ ક્ષેત્ર છે. તો ક્ષેત્ર જ જો ધાન્ય ઉગે નહીં તેવું થઈ જાય તો પછી શાળ વગેરે ધાન્યનો ક્યાંથી સંભવ હોય? ન જ હોય. જેમ જળ તરંગ રૂપે પરિણામ પામે છે તેમ વિચિત્ર વાસનાવાળું ચિત્ત જ ભાવ અને અભાવવાળા પદાર્થોના આકાર રૂપે પરિણામ પામે છે. એ રાજા, જેમ સામ્રાજ્યથી સર્વ અર્થ સારી રીતે સિદ્ધ થાય તેમ ચિત્તને ઉખેડી નાખવા રૂપી સર્વ ત્યાગથી સદાકાળ બધું સારી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એ ત્યાગી રાજા સખીભાઈ, જેમ તમને બીજો પદાર્થ બધું સારી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એટલે એ પરમ ચિદાકાશ, પરમ પદ, પૂર્ણ વિશ્રાંતિ, એ બધું સારી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય. પાછું માયાનું ન સમજો. આ બધા સકામ હોય ને, અંદર કામના હોય એટલે એના જ અર્થ કરે, પણ નિષ્કામ હોય ને એની પાસે સાચા અર્થ મળે. સકામ પાસે સાચા અર્થ ન મળે કોઈ દિવસ. એમ તમે ચિત્તનો ત્યાગ કરો એટલે બધું સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય. અરે ભાઈ, બધું એટલે આ માયા નહીં. તમને એ પરમ ચિદાકાશ, પરમ પદ, પૂર્ણ વિશ્રાંતિ સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે એમ લેવાય. પોઝિટિવ, નેગેટિવ અર્થ ન કરાય તો પછી કાંઈ સાચું સાંભળ્યું જ નહીં, સાચું જાણ્યું જ નહીં, સાચું રહ્યા જ નહીં. એટલે બધું ખોટે ખોટું. હા, બધું સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય. પરમાત્મા સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે એમ હોય. પરમ ચૈતન્ય, પરમ પ્રકાશ, પરમ આનંદ, પરમ શાંતિ. ચાલો, સારી રીતે. હે ત્યાગી રાજા શિખીધ્વજ, જેમ તમને બીજો પદાર્થ કૌશમાં રાજ્યાદિક સર્વ ત્યાગના વિષયરૂપ છે કે જેનો તમે ત્યાગ કર્યો
તેમ અહંકાર કિંવા ચિત્તરૂપે અવશેષ રહેલા તમે પોતે પણ બીજા કોઈના કૌંસમાં શુદ્ધ આત્માના છો. તેથી તે અહંકારનો ત્યાગ કરવા લાયક છો અને તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય અહંકારને કિંવા ચિત્તને તમે ગ્રહણ કરી રાખેલું છે. તેથી તમારો સર્વ ત્યાગ સિદ્ધ થતો નથી. હું સર્વત્યાગી છું એ હુંનો સર્વત્યાગ કરો. હું સંન્યાસી છું એ હુંનો સર્વત્યાગ કરો. સમજાય? એટલે સંન્યાસ નથી. સમજે? એટલે મેં ઘરનો ત્યાગ કર્યો. સમજાય? મેં કામનો ત્યાગ કર્યો, ફેમિલીનો ત્યાગ કર્યો. અરે ભાઈ, હુંનો ત્યાગ કરવાનો છે. અને હું નથી તો પછી બીજું કાંઈ નથી, તો પરમ શાંતિ જ છે. અને તમે વનમાં જાઓ ત્યારે હિમાલયની ગુફામાં જાઓ, પણ અંદર ચિત્ત હોય કે નહીં, હું હોય કે નહીં, એટલે શાંતિ ન હોય. હિમાલયની ગુફામાં શાંતિ નથી, હું નથી ત્યાં શાંતિ છે. શું કહેવાય? હા, ચાલો. પણ કોઈ માની લે કે માનમાં હું નથી, તો પછી બધું ભેગું કામ કર્યું? એ કોણે કર્યું? એ પરમાત્માએ કર્યું. હવે મને શાંતિ જ છે, એટલે બધી માયાની શાંતિ નથી. મારે માયાની બધી શાંતિ છે. જે રમણ પાસે એક મહારાણી પણ આવતા, રાજા પણ આવતા, મહારાજા આવતા, એ લોકો એને સફેદ મોર ભેટમાં આપે. એટલે મહારાણી કે મારી પાસે બધું સુખ છે પણ મને શાંતિ નથી. સાચો આત્મા હોય તેમ કબૂલ કરે, અને જૂઠો હોય તો કે મારે બધું ફૂલ છે, મારે બધી શાંતિ છે, મારે બધું સારું છે, એને કોઈ દી શાંતિ થાય જ નહીં. બધી માયા હોય એ બધી અશાંતિ હોય, અને કોઈ માયા ન હોય, અંદર હું એ માયા ન હોય, ચિત્ત એ માયા ન હોય, તે ગમે ત્યાં હોય તો બધી શાંતિ જ હોય. અને હું એ માયા હોય, ચિત્ત એ માયા હોય, સંકલ્પ ન હોય, સમજાય? તો હિમાલયની ગુફામાં શાંતિ ન હોય. સમજાય? કે કોઈ બહાર કંઈ ઘર બહાર કે ગામ બહાર, ફેમિલી બહાર, કંઈ કોઈ આશ્રમ મંદિરમાં, કોઈ ગંગા કાંઠે કે હિમાલયમાં, ત્યાં શાંતિ નથી. જ્યાં અહંકાર નથી, ચિત્ત નથી, સંકલ્પ નથી, ત્યાં શાંતિ છે. જ્યાં હું મારું નથી, રાગ દ્વેષ નથી, ભેદાભેદ નથી, ભાગભેદ નથી, આ કોઈ ભેદ નથી, આ કોઈ દ્રશ્યનો ભ્રમ નથી, અહંકારનો ભ્રમ નથી. અને બસ એ જ છે, હે ને? અનંત પૂર્ણ પરમ ચિદાકાશ પરમ શાંતિ, મહાચિદાકાશ પરમ કૈવલ્ય પરમ શાંતિ એ છે જ. અને કોઈ અહંકારનો ભ્રમ ને, દ્રશ્યનો ભ્રમ ને, હું મારુંનો ભ્રમ છે જ નહીં. ऐसा समझ में? शरीर तो साथ में है ही, कहाँ भी जाओ तो शरीर है, तो संकल्प कल्पना है ही, अहंकार है ही, चित्त है ही, तो आने जाने का कहाँ है? ग्रहण त्याग कहाँ है? कहीं भी हो, सर्वत्र सदा महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजिर हाजिर. महाचिदाकाश सब कुछ है, सब जगह है. तो अहंकार नहीं है, बस चित्त नहीं है, देह नहीं है, दृश्य नहीं है, मैं मेरा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, कोई बड़ा छोटा भला बुरा भेदाभेद नहीं है, सब एक है. सब माँ चैतन्य प्रकाश है, भरपूर, आँखों अनंत भरपूर माँ चैतन्य प्रकाश. कोई जगह खाली नहीं, विकल्प के लिए जगह नहीं. वशिष्ठ राम को कहते हैं जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं. आप आकाश में देखो, कहीं भी काली टिप की कलंक संभवित नहीं. वैसे चैतन्य आकाश में देखो, कहीं भी अहम रूपी काली टिप की कलंक संभवित नहीं. चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं. ये है परम सत्य, परम तत्व, परम चिदाकाश. चलो, तो तुम चित्त माने अहंकार, उसका त्याग सर्व त्याग है ना? उसको रखेंगे तो घर तो छोटा था और दाल रोटी राम राम था, तो वो तो कम उपाधि था. बाहर निकला तो बड़ी बड़ी कोठियाँ ने, बड़ा बड़ा आश्रमों ने, बड़े बड़ा मंदिरों ने. आए तुम्हारा जमावट क्या है ना? પછી શિષ્યો, સેવકો, फिर तो कथा है ना, और फिर तो प्रॉपर्टी है, तो संसार बड़ा हो गया. ऐसा है. और खाना पीना जमावट हो गई. हाँ. चलो, ये ऊपर से अहंकार से है, वो रहता है तो अंदर वासना रहती है, वासना का संकल्प रहता है, हम जगत में मेरा रहता है, तो बड़ा संसार बना रहता है. खाली बाहर से ही भगवा वेश दिखता है. वेश खाली उसने इसको ऐसा बोलते, इसने वेश काढ़ो है ना, तो वेश काढ़ो, समझे? वो कुछ नहीं है. अब जहाँ है
तो इतना जानेंगे कि महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, तो महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, और मैं कुछ है तो कहीं भी जाएगा तो संसार खड़ा करेगा ऐसा, और मैं नहीं है तो कहीं भी संसार नहीं है, तो सब पर ब्रह्म परमात्मा है, परम शांति है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। चलो ये है સંસારના સગળા પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો એટલે કે સઘળું કંઈ આત્માનું જ સ્વરૂપ છે એવું જે જાણ્યું છે તેને સૂતરના તાંતણો જેમ મોતીની અંદર પુરવાઈ રહ્યો હોય તેમ સર્વ પરમાત્મામાં જ પરોવાયેલું લાગે છે। જેણે સર્વ ત્યાગ કર્યો તેના કૌશમાં આકાશને એવા શૂન્ય સ્વરૂપમાં પણ આ સર્વ જગત જેમ તાંતણામાં મોતિયું પરોવાઈ રહે તેમ ત્રણેય કાળમાં પરોવાઈ રહેલું લાગે છે। જે તેલ વગરના દીવાની પેઠે સર્વનો ત્યાગ કરે છે તે પોતે બ્રહ્મ ચૈતન્ય થવાથી તેલવાળા દીવાની પેઠે સર્વત્ર પ્રકાશે છે। જે આ દેખાતા સર્વ જગતનો ત્યાગ કરી તેલ વગરના દીવાની જેમ શાંત થઈ રહે તે સર્વ સમાનપણે વર્તી તેલવાળા દીવાની જેમ પ્રકાશ રૂપે શોભી રહે છે। જેમ રાજ્ય, વન, મૃગચર, કમંડલું, માળા, ઝૂંપડી વગેરે સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કર્યાથી કેવળ તમે પોતે એક જ માત્ર બાકી રહો છો, તેમ આ સર્વ કૌંસમાં અંદરના અને બહારના પદાર્થોનો ત્યાગ કર્યાથી એક માત્ર જ્ઞાનરૂપ શુદ્ધ પરમાત્મા જ બાકી રહે છે। બહારનો ત્યાગ કર્યો પછી અંદરનું કીધું એ આ ચિત્ત ત્યાગ, અહમ ત્યાગ, અને બહારનો કરો ને અંદરનું ન થાય તો એ બહારનું પાછું ઊભું થાય, સમજાય? એટલે તમે અહંકાર કે ચિત્ત સંકલ્પ કલ્પના રાખીને બહાર નીકળ્યા તો એ પાછું જગત બનાવી જ લે, સંસાર બનાવી લે। આ અંદરનો પણ એ મેઇન છે, એટલે અંદરથી અહંકારનો ત્યાગ હોય તો પછી તો અંદર હોય તો બહાર હોય ને, દ્રષ્ટા હોય તો દ્રશ્ય હોય, એટલે અહંકાર હોય તો જગત હોય, પણ અહંકાર નથી એટલે જગત નથી, એટલે પછી હું મારું નથી, પછી રાગદ્વેષ નથી, એટલે પછી આ બધી ઝંઝટ જપા મેં બખેડા એ કોઈ જાય નહીં ऐसा। અંદરનો તથા બહારનો પછી શું રહ્યું? અખંડ ચૈતન્ય है ना, पूर्ण चैतन्य ऐसा, એટલે पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगन, अनंत चिदगन, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। અંદરનો તથા બહારનો ત્યાગ, અંદરનો ત્યાગ આપણે કહે ને स्वच्छता त्या प्रभुता, तो स्वच्छता अंदरनी, अहंकार कुछ नहीं है, स्वच्छता बाहरनी, दृश्य कुछ नहीं है, फिर क्या है? अंदर बाहर कुछ नहीं है, फिर क्या है? तो अखंड ब्रह्म है, अखंड सच्चिदानंद है ना, ऐसा अखंड परमात्मा है, परम चिदाकाश है, महा परमाकाश है, महाचिदाकाश है। अंदर और बाहर का ये दो बात वसित में इतना क्लियर है कि जो वासना रखेगा ना तो ऊपर ऊपर से बदलेगा और अपना आम को पोसने का अर्थ लेगा, वासना पोसने का अर्थ लेगा, और सच्चा होगा जिसको सच्चा चाहिए परमात्मा, परम पद पूर्ण विश्रांति, तो हमको भी छोड़ेगा, चित्त संकल्प कल्पना भी छोड़ेगा, वासना को भी छोड़ेगा, मैं को भी छोड़ेगा, मेरा को भी छोड़ेगा, राग द्वेष छोड़ेगा, सब परमात्मा है, सब महाचिदाकाश है, सब समान है, सब आनंद और शांति है, सब पूर्ण है, भरपूर है, कोई जगह खाली नहीं। और अहम के लिए, चित्त के लिए, मैं मेरा के लिए, राग द्वेष के लिए, बड़ा छोटा भला बुरा भेदा भेद के लिए, भाग भेद के लिए जगह ही नहीं है, तो अखंड है। महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य, ऐसा। फिर क्या रहा? अखंड ब्रह्म रहा, अखंड चैतन्य रहा, अखंड सत्य रहा, अखंड आनंद, अखंड शांति, अखंड पूर्णता, अखंड समता, अखंड तृप्ति, अखंड संतोष, अखंड समाधान, अखंड कल्याण, है ना, अखंड अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म, अनंत संपूर्ण, अखंड अविनाशी, ये है। चलो अंदर का और बाहर का, तो लोग बाहर का त्याग करते हैं, अंदर का रह जाता है, इसलिए कुछ बन बैठते हैं। मैं कामिनी कांचन त्यागी हूँ, मैं सर्व त्यागी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, फिर चलो वो मैं कोई ब्रह्म बना लेगा, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो अहंकार ब्रह्म नहीं है, अहंकार परमात्मा नहीं है। अहंकार का त्याग करने के बाद जो परमात्मा है वो परमात्मा है,
अहंकार परमात्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ऐसा। तो अहंकार अहंकार रख के बाहर गया होगा तो अहंकार को मैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हूँ, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, मैं वितराग हूँ, ऐसा वो अहंकार है। और परमात्मा में कोई मैं है ही नहीं। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में कोई मैं है ही नहीं। चलो आगे। कहीं भी आप रहो और मैं होगा वो मैं ही संसार है। कहीं भी आप रहो और मैं नहीं होगा वो मैं नहीं है, वही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, ऐसा। चलो, तो ऐसा आप इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं कि परमात्मा प्लस अहम इक्वल टू संसार ब्रह्म, परमात्मा प्लस अहंकार ब्रह्म इक्वल टू संसार ब्रह्म, संसार ब्रह्म माइनस अहंकार ब्रह्म इक्वल टू परमात्मा, परमात्मा प्लस अहंकार ब्रह्म इक्वल टू संसार ब्रह्म, संसार ब्रह्म माइनस अहंकार ब्रह्म इक्वल टू परमात्मा, है ना सीधा। तो तुम अहंकार ब्रह्म का त्याग करो। कैसे? कि परमात्मा में अहंकार का ब्रह्म कुछ है ही नहीं, ये हो गया त्याग। त्याग करने का नहीं है, वो है ही नहीं। आप जागृत को स्वप्न ब्रह्म का त्याग नहीं करता है, स्वप्न पुरुष और की स्वप्न सृष्टि, वो जागृत है बस, स्वप्न है ही नहीं। तो परमात्मा है तो अहंकार का ब्रह्म है ही नहीं, इसलिए संसार का ब्रह्म है ही नहीं। और क्या है? तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। परमात्मा क्या है? परब्रह्म क्या है? अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। चलो, देह क्या है वो? और देह क्या है वो? कृष्ण ने गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। देह क्या है? तो उसमें जन्म है उसका, फिर उसका मृत्यु है, फिर जरा वृद्धावस्था है, फिर व्याधि रोग है, तो दुख है, दोष है। तो उसका दुख तो जानना वो अज्ञान, वो ज्ञान का लक्षण है। और उसमें सुख और गुण मानना वो अज्ञान का लक्षण है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं ये देह क्या है? तो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देह में जन्म देखना, मृत्यु देखना, जरा मने वृद्धावस्था देखना, व्याधि मने रोग देखना, दुख दोष देखना, वो ज्ञान का लक्षण है। और उसमें सुख और गुण देखना वो अज्ञान का लक्षण है। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम, मैंने कहा कि इसमें दुख दोष देखना वो ज्ञान का लक्षण है। और इससे विपरीत अज्ञानम यदतोऽन्यथा, यद अन्यतः, तो ये अज्ञान है। माने इसमें सुख और गुण देखना वो अज्ञान है। देह में दुख और दोष देखना वो ज्ञान है। और देह में सुख और गुण देखना वो अज्ञान है, ऐसा है। समझे? एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा, है ना। चलो, હે પ્રિય રાજા, જેમ સર્વ વસ્તુઓને બાહ્યમુખી બાકી રહેલા તમે તમારા પોતાના સ્વરૂપથી જુદા નથી, તેમ સર્વનો ત્યાગ કરતા અવશેષ રહેલ પરમાત્મા પોતે કંઈ મોક્ષથી જુદા કહી શકાતા નથી, પણ તે રૂપ જ છે। જેમ આકાશ પોતે શૂન્ય હોવા છતાં અનેક મોટા સૂર્ય ચંદ્ર નક્ષત્ર આદિનો આશ્રય છે, તેમ સર્વત્યાગ કૌંસમાં સર્વનો અભાવ હોવાને લીધે કૌંસ પૂરું, તેમ સર્વત્યાગ શૂન્ય જેવો છે છતાં પણ તે સર્વ સત્તાઓનો આશ્રયરૂપ છે। જેમ આકાશમાં ઘંટી ટાંકવાની ટાંકણી કાંઈ બાદ કરી શકતી નથી, તેમ સર્વત્યાગરૂપી રસનું કાંઈ પણ પાન કર્યાથી કૌંસમાં અસંગ થઈ ગયેલા પુરુષને જરા મરણ ઇત્યાદि ભય કાંઈ પણ બાદ કરી શકતા નથી। નિર્મળ સ્વસ્વરૂપનો બોધ કરનારી મોટાઈનું કારણ સર્વત્યાગ જ છે, કેમ કે સર્વત્યાગ કર્યાથી બુદ્ધિ એકદમ સ્થિર થઈ જાય છે। સર્વત્યાગ એ જ પરમ આનંદરૂપ છે, તે સિવાય બધું મહાભયંકર દુઃખ આપનાર છે। એ વાત હૃદયમાં રાખી પછી તમને જે ઈચ્છા થતી હોય તે કરો। જેમ સમુદ્રનું જળ વડવાગ્નિમાં જાય છે પણ તે પાછું
તેમ પાછું બીજું જળ નદી દ્વારા આવે છે. તે જ પ્રમાણે જે પુરુષ સર્વનો ત્યાગ કરે છે તેને પાછું તે બધું આવી મળે છે. જેમ પાત્રના પુરાણ બધું ભાગમાં એટલે માયા નહીં, બધું એટલે પરમાત્મા અને પરમ શાંતિ. પાછું એમ થાય કે હા છોડી એટલે બધું આ એવું જ કર્યું કે આપણે બીજો કોઈ બિઝનેસ કામ ધંધો ન આવડતો તો બાવો થઈ જવાનો એટલે કરોડો બની જાય, કથાકાર બની જાવ એટલે કરોડો ભેગા થઈ જાય. એ સબ ચોર કંપની. ચાલો બધું આવી મળે. આ બધા અર્થ જો માયાવી જીવ હોય ને તો આવા જ અર્થ કરે. હા આ શું કે ત્યાગે ઉનકે આગે ને માગે ઉનકે પીછે ને આવું બધું બનાવે એમ. સર્વત્યાગ કરો તો પછી બધું આવી મળે. તો કે યોગાસન બહુ હોય તો જ્યારે ભાઈ રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહે છે કે સત્સંગના બે અર્થ થાય, શબ્દાર્થને મર્માર્થ, શબ્દાર્થ છોડી દેવો ને મર્માર્થ લઈ લેવો. તો બધું એટલે પરમાત્મા, બધું એટલે માયા નહીં. અને બધાનો ત્યાગ કરે એટલે પરમાત્મા આવી મળે છે એમ લેવાય. પછી થોડુંક છોડીને પછી વધુ થોડી માયા છોડીને વધુ માયા મળી એ કાંઈ પરમાત્મા મળ્યા ન કહેવાય. વધારે માયામાં ખૂબ ઉપયોગ ફસાણો એ શાંતિ અશાંતિ વધે, ઉપાધિ વધે. અને તમે કોઈ પણ સંન્યાસી જુઓ, સાધુ સંન્યાસી બ્રહ્મચારી, તો અહંકાર હશે ને, ચિત્ત સંકલ્પ કલ્પના હશે ને, હું મારો હશે, આ દેહ હું છું એવો હશે, તો જોજો તમે એ શોધતા જ હશે, માયા જ શોધતા હશે. क्या चाहिए तो कि जमीन चाहिए, क्या चाहिए तो कि आश्रम चाहिए, कुटीर चाहिए, मंदिर चाहिए, शिष्य सेवक चाहिए, पैसा चाहिए, આ સિવાય કાંઈ નહીં હોય. ગમે ને જાઓ, સારું સારું ખાવા પીના चाहिए, બીજું શું चाहिए? परमात्मा तो क्या परमात्मा मात्र किसने देखा है? जो अरे अहंकार नहीं है तो वहाँ परमात्मा दिखता है, अहंकार होता है वहाँ माया दिखती है. ऐसा है. चलो બધું પાછું આવી મળે છે. એટલે પછી શું કહે છે ખબર છે? હું અહીં સર્વત્યાગ કરું છું એટલે બધું મને ત્યાં પાછું આવી મળે છે. હું અહીં સર્વત્યાગ કરું છું એટલે ત્યાં મને પાછું આવી મળે છે. એ માયાવીના અર્થ માયાના જ હોય અને પરમાત્માનો પ્રકાશ પરમાત્માના જ હોય. ચાલો જેમ પાત્રના પુરાણ ભાગમાં જ રત્નાદિ રહી શકે છે તેમ એ સર્વત્યાગની અંદર જ આત્માને પ્રસન્ન કરનારું જ્ઞાન રહ્યું છે. શાક્ય મુનિ કે જે વેદથી વિમુખ હતા અને અતિ નીચ હતા તેમજ કલિકાળમાં રહ્યું છે આત્માને જેમ પાત્રના પોલાણના ભાગમાં જ રત્ન આદિ રહી શકે છે તેમ એ સર્વત્યાગની અંદર જ આત્માને પ્રસન્ન કરવાનું જ્ઞાન પ્રસન્ન રહ્યું છે. આ બધું આવી મળે છે. સર્વત્યાગ કરવાથી આ આત્માને પ્રસન્ન કરવાનું જ્ઞાન એ મળે. સમજે? આ માયા ન મળે. બધું આવી મળે છે. આ નહીં, માયા નહીં, આત્માને પ્રસન્ન કરનારું જ્ઞાન. અહંકારનો ત્યાગ કરવાથી, ચિત્ત સંકલ્પ કલ્પનાનો ત્યાગ કરવાથી, હું મારુંનો ત્યાગ કરવાથી, રાગ ભેદનો ત્યાગ કરવાથી, ભેદભાવનો ત્યાગ કરવાથી આ બધું જે છે આ બધો એક ભ્રમ છે, કાંઈ નથી. અને પરમાત્મા છે એ સર્વસ્વ છે, અખંડ સત ચૈતન્ય આનંદ. આ બધું અસત જગને નિરાનંદ છે. તો આનો ત્યાગ કરવાથી એ અખંડ સત ચૈતન્ય આનંદ એ પરબ્રહ્મ મળે છે, એ પોતાનું સ્વરૂપ એમ કહેવાય. બધું આવી મળે છે એટલે એ પરબ્રહ્મ અખંડ સચ્ચિદાનંદ આવી મળે છે. અને અમને આ ચિત્તને આપણે સંકલ્પ કલ્પના વિદ્યા વાસનાનો સંકલ્પ રાખવાથી હું ને જગતને, હું ને મારું ને ઉપાધિઓ આવી મળે છે. એમ સીધું લેવું પડે, પોઝિટિવ. ચાલો શાક્ય મુનિ કે જે વેદથી વિમુખ હતા અને અતિ નીચ હતા તેમજ કળીકાળમાં જન્મ્યા હતા તે પણ સર્વનો ત્યાગ કરી મેરુની પેઠે સ્થિર રહ્યા હતા. હે મહારાજ, સર્વત્યાગ એ સર્વ સંપત્તિઓનું રહેવાનું સ્થાન છે. કેમ કે જે પુરુષ કાંઈ લેતો કોઈ એમ કે મેં કામિની કાંચનનો ત્યાગ કર્યો તો એ કામિની કાંચન બહાર છે કે મનમાં છે?
અને મનનો ત્યાગ કરે તો ક્યાંય કામિની કાંચન છે? અહંકારનો ત્યાગ કરે, દેહ હું છું એ ઈગો અહંકારનો ત્યાગ કરે તો પછી બધું પરમાત્મા જ છે. અહંકાર છે તો અહંકારને કામિની કાંચન દેખાય, તો બહારથી કામિની કાંચન કોઈ સ્ત્રી ધનનો ત્યાગ કરે તો અંદર અહંકાર છે એટલે તો છે જ, એ એનું મૂળ છે એટલે મૂળ રાખ્યું ને બાહ્ય ત્યાગ કર્યો તો અંદર તો રાખ્યું ને. આ તો પછી એ અહંકારનો ત્યાગ એ સર્વ ત્યાગ છે, ચિત્તનો ત્યાગ એ સર્વ, બાહ્ય ત્યાગ એ ત્યાગ નથી. સમજે છે? એ સૂક્ષ્મ જે છે દેહ, એ દેહ છે. મન બુદ્ધિ ચિત્તાકાર એ સૂક્ષ્મ દેહ છે. આ સ્થૂળ દેહ છે એ સૂક્ષ્મ દેહ છે. એનું કારણ અવિદ્યા છે, અજ્ઞાન છે, આત્માને ન જાણવું. પણ અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરે એટલે બધો ત્યાગ થઈ ગયો. વાસના, ચિત્ત, અહમ, જગત છે જ નહીં. અવિદ્યા, મૂલાવિદ્યા, એ મૂલાવિદ્યાને અહંકાર કહે છે ને એ નથી તો કાંઈ બીજું આ ભ્રમ છે જ નહીં. અને પરમ શાંતિ જ છે ને. ચાલો ચાલો. હે મહારાજ, સર્વત્યાગ એ સર્વ સંપત્તિનું રહેવાનું સ્થાન છે, કેમ કે જે પુરુષ કાંઈ લેતો નથી તેને સર્વ આપી જાય છે. હે રાજા, તમે સર્વનો ત્યાગ કરી આકાશની જેમ અસંગ, સ્વસ્થ અને શાંત રહી તમારું જે ખરું રૂપ છે તે રૂપે કૌંસમાં બ્રહ્મરૂપે થઈને રહો. હે ઉદાર સ્વભાવવાળા રાજા શિખિપત, પ્રથમ આ સર્વનો ત્યાગ કરી દઈ પછી એ ત્યાગ કરવામાં સાધનરૂપ થયેલા ચિત્તનો પણ ત્યાગ કરી હું ત્યાગ કરનાર છું એવું ત્યાગનું અભિમાન કરાવનાર અહંકાર રૂપી મેલને પણ મૂકી દઈને ફરીથી થાઓ. ફરીથી હે ઉદાર સ્વભાવવાળા રાજા શિખિધ્વજ, પ્રથમ આ સર્વનો ત્યાગ કરી દઈ પછી એ ત્યાગ કરવામાં સાધનરૂપ થયેલા ચિત્તનો પણ ત્યાગ કરી હું ત્યાગ કરનાર છું એવું ત્યાગનું અભિમાન કરાવનાર અહંકાર રૂપી મેલને પણ મૂકી દઈને તમે જીવન મુક્ત થાઓ. હું ત્યાગી છું એ અહંકારનો પણ તમે ત્યાગ કરો. અને હું ત્યાગી છું તો પછી અહંકાર તો રહ્યો અને હું નથી તો પરબ્રહ્મ અખંડ સચ્ચિદાનંદ તો છે. હું ને કાંઈ પરબ્રહ્મ નથી થવાનું. પરબ્રહ્મ છે, પ્રથમથી છે. પરમાત્મા નવા આવતા નથી. અહંકાર નથી, એ ભ્રમ છે, અસત્ય છે, નથી. સબકા અહંકાર મિથ્યા है, सब मर जाते हैं. કરતા નથી ને એ ચાલુ રાખે છે. સમજે? અહમને કાંઈ પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરવાનું નથી. પરમાત્મા તો પ્રથમથી છે, નવા આવતા નથી. અને અહંકાર ભ્રમ है, असत्य नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं. એટલે અહંકાર ભ્રમ છે એ એનો ત્યાગ છે, કાંઈ નથી એ એનો ત્યાગ છે. અને પરમાત્મા તો છે એ પ્રથમથી છે, નવા આવતા નથી. એટલે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી, એ તો છે જ. અને અહંકારનું ગ્રહણ ત્યાગ થતો નથી, એ તો ભ્રમ છે કે કાંઈ છે જ નહીં. સમજ્યા છે કે નહીં? અંધારામાં દોરડીમાં સર્પનો ભ્રમ દેખાય અને ભય થાય તો કે એ સર્પભ્રમ છે એનો ત્યાગ કરવાનો નથી. દોરડી છે અને સર્પભ્રમ નથી, ભય નથી. એમ પરમાત્મા છે અને અહંકારનો ભ્રમ નથી, ચિત્તનો ભ્રમ નથી, સંસારનો ભ્રમ નથી, આ માયાનો ભ્રમ નથી, હું મારુંનો ભ્રમ નથી, જન્મ મૃત્યુનો ભ્રમ નથી, રાગ દ્વેષનો ભ્રમ નથી. આ બડા છોટા બરોબરા ભેદાભેદ ભાગ આ બધું કાંઈ નથી, ભાગભેદ. અને આખું અખંડ પરબ્રહ્મ છે, સચ્ચિદાનંદ. ક્લિયર થાય? એમ ભ્રમનું ગ્રહણે નથી, ત્યાગે નથી. ભ્રમ કાંઈ છે જ નહીં. અંધારમાં દોરડીમાં સર્પ ભ્રમ, તેનું ગ્રહણે નથી, ત્યાગે નથી. અને દોરડીનું ગ્રહણ નથી, ત્યાગ નહીં. તો છે જ પરમાત્માનું ગ્રહણ. પરમાત્મા પોતે જ છે, બીજું કોઈ છે જ નહીં, બીજું કાંઈ છે જ નહીં, બીજું કાંઈ થતું જ નથી. પરમાત્મા સ્વરૂપ છોડતા નથી, સ્વરૂપથી બીજું થતા નથી. તો પરમાત્મા એ તો છે જ, એમાં ગ્રહણ ત્યાગ નથી. અને એમાં આખો સંસાર ભ્રમ, અહંકારનો ભ્રમ, ચિત્ત ભ્રમ, હું મારુંનો ભ્રમ, રાગદ્વેષનો ભ્રમ, હું ને જગત દ્રષ્ટા દ્રશ્યનો ભ્રમ એ છે જ નહીં. એટલે એનું ગ્રહણ ત્યાગ નથી. છે એમાંય ગ્રહણ ત્યાગ નથી અને નથી એનું ગ્રહણ ત્યાગ નથી. એટલે આખો ગ્રહણ ત્યાગનો ભ્રમ જ ખોટો છે. એ બધું ચિત્તનું જ છે, અહંકારનો જ છે. એટલે એ જે બધા ભ્રમનો મૂળ ભ્રમ છે એ અહંકારનો તમે ત્યાગ કરો. હું ત્યાગી છું એ અહંકારનો પણ તમે ત્યાગ કરો, એમ ચુડાલો શીખતવાજને કહે. આ તમે ત્યાગનો અહંકાર કર્યો કે હું ત્યાગી છું, તો એ અહંકારનો ત્યાગ એ ત્યાગ ખરો ત્યાગ.
તમે અહંકાર રાખો ને પછી ગમે તે ગ્રહણ ત્યાગ કરો તો કાંઈ થયું જ નહીં, કારણ કે પેલું ચાલુ જ છે. મૂળ ગ્રહણ ત્યાગનો ભ્રમ અહંકારના ભ્રમમાં છે. એટલે તમે બહારનો ત્યાગ કરો તો અંદર તો ચાલુ જ છે. અંદરના અહંકારનો એક સૂક્ષ્મ શરીર છે, એ શરીર છે પાછું, એટલે કાંઈ નથી. કારણ કે આત્મા શરીરને જાણે છે, આત્મા ચૈતન્ય છે, જ્ઞાન છે, મોક્ષ સ્વરૂપ છે, તો એ તો જાણે છે કે આ નથી, આ હું નથી, આ બાધિત છે. અને જેનો બાદ થતો નથી એ હું છું. એ આદિથી રહિત, અંતથી રહિત, આકૃતિ ચૈતન્ય પ્રકાશ જ સાચો દેવ છે. એ હું છું. ચૈતન્ય સ્વયં પ્રકાશ સ્વસમેત્ય, તેમાં ગ્રહણ ત્યાગ નથી. સમજે? જાણનાર છે એમાં ગ્રહણ ત્યાગ નથી, અને જે જણાય છે એ ભ્રમ છે, એટલે એના ગ્રહણ ત્યાગ નથી. એટલે હુંને જો આત્મા માનો તો કોઈ દી ત્યાગ થાય જ નહીં. એટલે રમણ એમ કે ચોર પોલીસનો વેશ ધરે તો કોઈ દી ચોર પકડાય જ નહીં. એમ અહંકાર બ્રહ્મ થઈ જાય ને, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, તો કોઈ દિવસ અહમ પકડાય જ નહીં. જેનો ત્યાગ કરવાનો છે પકડાય જ નહીં. ચોર અહમ બ્રહ્મ થઈ જાય, વેશ ધરે, ચાલો ભગવો પહેરી લીધો, હવે હું સર્વત્યાગી છું, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હવે હું બ્રહ્મ છું, તો ચોર પકડાય જ નહીં. અહંકાર બ્રહ્મ થઈ ગયો. સમજાય? એટલે વેશ ધર્યા વગર અહંકારનો ત્યાગ કરે તો ચોર ગયો, અને બ્રહ્મ તો છે જ, અને આનંદ ને શાંતિ તો છે જ. બ્રહ્મ છે એ ચૈતન્ય પ્રકાશ છે, એ કોઈ શબ્દ નથી, એ કોઈ વિચારવાણી શબ્દનો વિષય નથી. આ સૂર્ય છે, સૂર્ય શબ્દ નથી, એ તેજ છે, જ્યોતિ છે, પ્રકાશ છે. એમ બ્રહ્મ છે એ ચૈતન્ય તેજ છે, ચૈતન્ય પ્રકાશ, ચૈતન્ય જ્યોતિ છે, અનંત છે, અને પૂર્ણ છે, સમાન છે, વ્યાપક છે, એકરૂપ છે, કોઈ જગ્યા ખાલી નથી, એના વિના બીજું કાંઈ નથી. સમજાય? એના ઉપર કાંઈ નથી. એટલે જો અહંકાર બ્રહ્મ થઈ જાય, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, તો ચોર પકડાય જ નહીં, ચોર પોલીસ થઈ ગયો, અહમ બ્રહ્મ થઈ ગયું. એની કરતાં વેશ ન ધરવો અને અહંકાર કાંઈ નથી એમ જાણવું, એ અહંકારનો ત્યાગ છે. અને બ્રહ્મ તો છે જ. બ્રહ્મ કાંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી, પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરવાનું નથી, તો પ્રથમથી જે નવા આવતા નથી ને પોતામાં પોતે જ છે, એમાં બીજું કાંઈ નથી ને બીજું કાંઈ થતું નથી. ખાલી આ ભ્રમ થયો કે હું જન્મ્યો છું, તો વશિષ્ઠરામને કહે છે જન્મથી માણસે આ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવું જોઈએ. 7-8 વર્ષના બ્રહ્મચારી બટુકે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવું જોઈએ. એટલે શું કે આ હું જન્મ્યો છું એ ભ્રમ કાંઈ નથી, અને આ બધો અખંડ બ્રહ્મ જ છે, પરમાત્મા જ છે, અખંડ સચ્ચિદાનંદ જ છે. હું જન્મ્યો છું તો બધું લાગુ પડી જશે. આ દેહ હું છું એમ, એટલે હું પછી બાળક થાઉં, કિશોર થાઉં, તરુણ થાઉં, યુવાન થાઉં, પ્રૌઢ થાઉં, વૃદ્ધ થાઉં, મરી જાઉં, એ તો કાંઈ નથી. અને આ તો જન્મતોય નથી, જીવતોય નથી ને મરતોય નથી. અનંત ચૈતન્ય પ્રકાશ, અનંત ચૈતન્ય શાંતિ, એ બ્રહ્મ છે, એ પરમાત્મા. આકાશ જેવો મહાચૈતન્ય પ્રકાશ, બધે ભરપૂર. ચાલો, અનંત અખંડ ભેદ, એક જ અદ્વિતીય અનાદિ અનંત. હે ઉદાર સ્વભાવવાળા રાજા શિખીધ્વજ, પ્રથમ આ સર્વનો ત્યાગ કરી દઈ, પછી એ ત્યાગ કરવામાં સાધનરૂપ થયેલા ચિત્તનો પણ ત્યાગ કરી હું ત્યાગ કરનાર છું એવું ત્યાગનું અભિમાન કરાવનાર અહંકાર રૂપી મેલને પણ મૂકી દઈને તમે જીવન મુક્ત થાઓ. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણ પ્રકરણના પૂર્વાર્ધો શિખીધ્વજ અવળબોધ નામનો સર્ગ પ્રસાદ આપજો. હા, ચાલો. સર્ગ 94. આ 94માં સર્ગમાં ચિત્તનો ત્યાગ કરવા માટે તેનું મૂળ શોધતા દેહ આદિ સર્વ વિષયોનો બાદ થઈ ગઈ. છેવટે એક ચિદ્રૂપ પરમાત્મા જ શેષ રહે છે એ વાત કહેવામાં આવશે. ચિદ્રૂપ જ અવશેષ રહે એવો મૂળ. વશિષ્ઠ બોલ્યા, એ પ્રમાણે કુંભના વચન સાંભળી તે રાજા અંતરમાં ચિત્તના ત્યાગનો વારંવાર વિચાર કરી પોતે શાંત થઈ બોલ્યો. શિખીધ્વજ રાજા બોલ્યો, હૃદયરૂપી આકાશમાં પક્ષીની જેમ રહેલું અને હૃદયરૂપી વૃક્ષમાં વાંદરાની જેમ રહેનાર એ ચિત્ત મારું નથી એમ મેં ત્યાગ કર્યા છતાં વારંવાર પાછું આવી ઊભું રહે છે. હે ઉત્તમ દેવપુત્ર, માછલું જેમ આતુરતાથી જાળમાં ફસી પડે તેનો સ્વીકાર કરી લે તેમ હું એ ચિત્તનો મમત્વ બુદ્ધિથી સ્વીકાર કરવાનું તો જાણું છું,
પરંતુ જેમ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરી શકાય છે તેમ એ ચિત્તનો ત્યાગ કરવાનો ઉપાય હું જાણતો નથી. માટે હે સમર્થ મહાઐશ્વર્ય દેવપુત્ર, પ્રથમ આપ બરાબર ચિત્તનું સ્વરૂપ કહો અને પછી એ ચિત્તના ત્યાગનો ઉપાય બરાબર રીતે કહો. કુંભ મુનિ બોલ્યા, હે રાજા શિખિતભાઈ, વાસના જ ચિત્તનું સ્વરૂપ છે એમ તમે સમજો, અને જગતમાં પણ ચિત્ત એટલે વાસના એમ કહેવામાં આવે છે. ચિત્તનો વાસના એટલે કલ્પના, ઇમેજિનેશન, કલ્પના. એટલે કલ્પના છે એ ચિત્તનું સ્વરૂપ છે. તમે કલ્પના છોડી દો એટલે ચિત્ત નથી, એટલે પછી માયા નથી, અને પછી બ્રહ્મ જ છે, અને આનંદ અને શાંતિ. કલ્પના રાખો એટલે પછી બધી માયા આવી જાય, અને કલ્પના છોડી દો એટલે કોઈ માયા ન રહે. એટલે કલ્પના છે એ જ ચિત્તનું રૂપ છે, અને કલ્પનાનો ત્યાગ એ જ સર્વ ત્યાગ છે, એ જ સંન્યાસ છે. અને કલ્પના રાખીને બાહ્ય સંન્યાસ એ સંન્યાસ નથી. સમજાય? વાસના એટલે કલ્પના. સમજાય? બ્રહ્મ તત્વ જગત કલ્પના. 8મો પરમાત્મા તત્વ પ્રકાશ, 108મું પણ છેલ્લું વાક્ય. બ્રહ્મ જ તત્વ જગત કલ્પના. કલ્પના છોડી દો તો બ્રહ્મ જ છે, અને આનંદ અને શાંતિ જ છે. ચાલો. તે ચિત્તનો ત્યાગ અતિ સહેલો છે અને નિમેષના કરતાં પણ ઓછા સમયમાં સુખે સાધી શકાય તેવો છે. રાજ્ય કરતાં પણ અધિક આનંદ આપનાર છે અને ફૂલથી પણ વધારે મનોહર છે. જેમ કોઈ પામર પ્રાણીને સામ્રાજ્ય દુઃખ વડે સાધી શકાય તેવું મુશ્કેલ લાગે, અને જેમ બીજો અર્થ થાય છે ઈચ્છા, વિષ, ઈચ્છા. કલ્પના થાય એમ ઈચ્છા. વાસનાનો બીજો અર્થ થાય છે ઈચ્છા. તમે ઈચ્છા કરો એટલે સંસાર ઊભો થાય, અને ઈચ્છા ન કરો તો બ્રહ્મ છે જ, અને આનંદ શાંતિ પરમાત્મા છે જ, આનંદ શાંતિ છે પેલું. એટલે ઈચ્છા કરવી એટલે શું? પેટ ચોડીને સૂળ ઊભો કરવું, અથવા દુઃખ ન હોય તો ડોબું ઓરવું, એ ઈચ્છા. સમજાય? એમ કે ને ગામડામાં એમ કે દુઃખ ન હોય તો ડોબું ઓરવું એમ. એટલે ઈચ્છા કરવી એટલે શરૂ થઈ ગયું. સમજાય? ચાલો. આપણે પેલા પાલનપુર બ્રહ્મપુરી આશ્રમમાં 6-7 વર્ષ પહેલાં તત્વ બત્યું ને, એટલે બ્રહ્મદેવતા નટુ પ્રભુ હતા, સરળ હતા, ભાવિક હતા. એ બે બ્રાહ્મણી બે આવતા. એને પૂછ્યું કે આ બે વરકન્યા પેલા છોકરી એ કન્યા એ કોઈને ઓળખતા તો નહોતા જન્મ્યા પછી, જ્યાં સુધી બે જોડાણ નહોતા લગ્ન ગ્રંથિ ઓળખતા નહોતા. અને બેને બસ આ જ આપણું હું માનું, આ આપણે એક જ. એ કેટલી સેકન્ડમાં થાય? એ તમે વિવાહની જે પેલી સંસ્કાર કરો ને, જે ચોરીને એનો જે હસ્તમેળાપ વ્યવહાર જે કરો, તો કે 2 મિનિટ જ લાગે. 2 મિનિટમાં મરી ગયા સુધીનું લાગુ પડી જ ગયું. ઓનલી 2 મિનિટ્સ. હસ્તમેળાપ એટલે 2 જણ, આ બસ આ આપણે એક જ છીએ એમ થયું ને. તો ક્યાં હતું પેલા જન્મનો તો દેહ? ક્યાં હતો દેહ? પોતાનો ક્યાં છે? એ તો માતાના રજનો પિતાના વીર્યનો બને છે, એ પોતાનો નથી. પછી જીવ એન્ટર થાય છે. સમજાય કે નહીં? રજ અને વીર્યનો મેળાપ થાય છે, તો એ તો માતા પિતાનો છે. પછી કોઈ પુરુષે નથી, કોઈ સ્ત્રી નથી. કેમ કે દરેક પુરુષ શરીર છે એ માતા પિતાના રજ વીર્યનું બનેલું છે. પુરુષનું શરીર એમાંય માતા પિતા છે, સ્ત્રીના શરીરમાં માતા પિતા છે. તો પછી કોણ પુરુષ છે અને કોણ સ્ત્રી છે? એ અમદાવાદમાં આવું કીધું ને એટલે એક જણ કે આ તો પેલી કેટલી જગતની અજાયબી, કેટલી હાથ કેટલી છે ને, તો આ તો 14મી જગતની અજાયબી. એણે તો સીધું 14મી જ કીધી કે કોઈ સ્ત્રી દેહ નથી, કોઈ પુરુષ દેહ નથી, કારણ કે બંને દેહમાં માતા પિતાનો દેહ છે. સ્ત્રીના દેહમાં માતા પિતા છે અને પુરુષના દેહમાં માતા પિતા. પછી કોણ સ્ત્રી છે અને કોણ પુરુષ છે? એટલે ભ્રમ છે એ આ જે ચિત્તનો ભ્રમ છે ને, અહંકારનો ભ્રમ, એનો છે આ બધો. બાકી આત્મામાં કે પરમાત્મામાં, એ ચિદાકાશમાં કે સચ્ચિદાનંદમાં કોઈ ભ્રમ નથી. બ્રહ્મમાં કોઈ ભ્રમ નથી, અને કોઈ બ્રહ્મ નથી. બ્રહ્મમાં કોઈ ભ્રમ નથી, અને કોઈ ભ્રમ નથી. આ બધો ભ્રમ છે. હું ને જગત ને હું ને મારું ને. હવે એ અર્થમેળાપ કેટલી મિનિટ? તો કે 2 મિનિટ.
લ્યો 2 મિનિટમાં પાછું એક મરી જાય તો યાદ તો રહે જ પાછું અંદર તો કે અમારે બહુ સારા હતા ને જતા રહ્યા જાણે ભગવાન મરી ગયા લ્યો. એટલે પણ પહેલાં ક્યાં હતા એ માન્યું અને માનવું એ જ મનની કલ્પના છે, એ જ માયા છે, એ જ વાસના છે, એ જ ઈચ્છા છે, એ જ આસક્તિ છે, એ જ રાગ છે ને એ જ મોહ છે. ડિલ્યુઝન, ઇલ્યુઝન ને ડિલ્યુઝન, ભ્રમ અને મોહ. અને જેની અંદર આ કાંઈ ન હોય તો બ્રહ્મ જ છે અને આનંદ અને શાંતિ છે. હું છે તો એ જ માયા છે, એ જ મોહ છે, એ જ રાગ ને આસક્તિ, બધાનું કારણ સંસાર વ્યવહાર બધું એ જ છે. હું નથી, બ્રહ્મ છે અને આનંદ અને શાંતિ છે. સીધી વાત છે. સમજે એને માટે છે, પછી ન સમજે એને કાંઈ નહીં. ચાલો. જેમ કોઈ પામર પ્રાણીને સામ્રાજ્ય દુઃખ વડે સાધી શકાય તેવું મુશ્કેલ લાગે અને જેમ તૃણનું મેરુપણું થવું મહા મુશ્કેલ ભાસે, તેમ મનનો ત્યાગ પણ મૂર્ખ માણસને મહાકષ્ટ વડે સાધી શકાય તેવું મુશ્કેલ લાગે છે. શિખિતભદ્ર રાજા બોલ્યો, મેં ચિત્રનું વાસનામય સ્વરૂપ તો જાણ્યું, પરંતુ એ ચિત્રનો ત્યાગ વજ્રને ગળી જવા કરતાં પણ વધારે મુશ્કેલ છે એમ હું માનું છું. જે ચિત્ત આ સંસારરૂપી સુગંધની ઉત્પત્તિને માટે પુષ્પના જેવું છે, જે દુઃખરૂપી બળતરા પેદા કરવામાં અગ્નિ જેવું છે, જે જગતરૂપી કમળની સ્થિતિને માટે. રમણ એમ કે છે કે સમુદ્ર તરંગો को नहीं जानता, तो जो चिदाकाश છે એ આ સૃષ્ટિ રૂપી તરંગો को नहीं जानता, अहम रूपी, चित्त रूपी, संकल्प विकल्प रूपी तरंगों को नहीं जानता, परंतु खाली ब्रह्म मात्र है. महासागर, महासागर ही महासागर है. चलनो तरंग का ब्रह्म है ही. मन प्राण ने चित्त ने आ जीव जगत ने હું મારો ને રાગ દ્વેષ ને આ બધું જન્મ મૃત્યુ ને હર્ષ શોક ને આ બધું તરંગો છે. તો સમુદ્ર तरंगों को नहीं जानता, तो जो अनंत ब्रह्म महासागर है तो वो ये सृष्टि रूपी तरंगों को नहीं जानता है. ये तो ब्रह्म मात्र है, कुछ नहीं है. ऐसा. चलो. એવો મોટો કયો મેલ વળગ્યો છે કે જેથી તે ભલે 5 મિનિટ અમે આવીએ, 5 મિનિટ હમણાં આવીએ. આ પછી હા ચાલો લઈ દે. કુંભમુનિ બોલ્યા, હે મહાપરિક્રમી રાજા શિખિતભદ્ર, તમને એવો મોટો કયો મેલ વળગ્યો છે કે જેથી તમે તે ભલે સત્ય હોય કેવા મિથ્યા હોય પરંતુ તમે અજ્ઞાની થઈ રહ્યા છો. શિખિતભદ્ર રાજા બોલ્યા, ચિત્તરૂપી વૃક્ષના બીજરૂપ અહંકાર જ મને મેલ રૂપે વળગ્યો છે. તેનો ત્યાગ કરવાનો બરાબર હું જાણતો નથી, કેમ કે વારંવાર ત્યાગ કર્યો છતાં તે પાછો ફરીથી દેખાય છે. કુંભમુનિ બોલ્યા, દરેક પ્રકારના કાર્ય કારણમાંથી પેદા થાય છે. પ્રસાદ આપવાનો છે ને, આપો. અને પાવન બુક ગણી લો. પેલા જ્ઞાન મેં આપ્યું હતું, આપું પાછળના જ્ઞાન કોણ? હા, આખા વિશ્વની ભેટ.
52 થઈ ગયા? હા, લઈ આવો. જો બાકી હોય તો લઈ લો, હોય તો ગણી લો. થઈ ગયા. હા, પેલા પ્રસાદ આપી દો. તમારે જેને બાકી હોય લઈ લો પ્રસાદ. થઈ ગયા ને? થઈ ગયા ને? હા, આનંદ પ્રભુ એમને જોવા હોય તો જોઈ લેજો. બરાબર, આપ બતાડજો. બરાબર. શું છે બધું? આનંદ મંગળ, આનંદ પ્રભુ, આનંદ મંગળ છે ને? જોઈ લઈશું, એમને જોઈ લઈશું. રાખી દેજો. હા, પાણી ન પડે. હા, કાર્તિક.